for joining us for today's webinar. My name is Richa Singh, Chairperson Global Connect, a non-profit organization. Today we are presenting a science event workshop. Let's do a little housekeeping before we get started. If you have any questions during the presentation, please type them into the chat box control panel. Bring them up during the presentation. We also have time for questions as well. Your active participation is important throughout the session. Right now, we have everyone on mute. Noises that may distract you from listening to the speakers. If you want to say something, you can raise your hand. Actually, the continued efforts and the struggle for expanding the horizon of systematic knowledge created a need for describing and understanding the nature and events associated with it. This need led to the birth of what is known today as science. And today, science has become an important subject. Besides events like cooking, boiling water, electricity, mobile phones, makes us realize the presence of science in our everyday life. So focusing this topic, and without any further ado, we'll turn the time over to our expert. So our first presenter we have Dr. Harswarup Sharma, an ex-senior scientist, Bhabha Atomic Research Center, Mumbai. Presently, he's a professor in Amity Institute of Nuclear Technology. He chaired DRDO Assessment for Promotion of Scientists in Chemistry. He was awarded Silver Medal by Hindi Vigyan Sahitya Parishad, BARC, Mumbai, for outstanding contributions for the cause of management and communication science. His publications include 16 international journals, 54 conferences, and 3 BARC reports. So welcome, sir, in our today's event. Our next presenter is Dr. Vikram Daga. He completed his BTech in Chemical Engineering from IIT Roorkee and did his PhD degree in 2011 from US. He's currently a scientist at a company called SABIC and involved in research and development of new plastics that are used in various applications like automotives, cell phones, etc. We welcome you, sir. Thank you. बच्चों, समस्याओं का हल निकालना चाहिए और छात्र में एक वैज्ञानिक होना चाहिए। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे अगले वक्ता हैं, वो हमारे शहर से हैं, दीपक शर्मा जी। मेरठ के पहले विज्ञान अध्यापक हैं जिन्हें विज्ञान को ग्लैमराइज करने का श्रेय जाता है, यानी विज्ञान को बेहतर बनाने का श्रेय जाता है। एशिया के ये पहले अध्यापक हैं जिन्हें यूरोपियन साइंस मीट में आमंत्रित किया गया। 2004 में मेरठ का सबसे पहला टेलीस्कोप लाया गया, वो इन्हीं के द्वारा लाया गया। शुक्र परागमन के द्वारा पृथ्वी से सूरज की दूरी मापने वाले विश्व के ये पहले व्यक्ति बने। 2005 में एक छड़ की मदद से पृथ्वी की परिधि मापने का प्रयोग भारत में पॉपुलर किया और अब हर हिस्से में इस प्रयोग को किया जा रहा है। बालकों में वास्तविक प्रोजेक्ट की टीम के रूप में विज्ञान कांग्रेस के रूप में मेरठ को देश भर में इन्होंने पॉपुलर किया। अभी हाल ही में देश के 2 राष्ट्रपति महोदय द्वारा इन्हें प्रदान किए गए। पहला मिला इन्हें बच्चों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए और दूसरा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। स्क्रीन हमारी तरफ से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आप तुम्हारी तरफ से ये वर्तमान में देश का पहला विज्ञान चैनल और विज्ञान पत्रिका करके सीखें तो ये चला रहे हैं, देश में अपना स्थान रखती है। सर, आपका आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। So today I'm hosting with Mr. Abhishek Sharma, Secretary Global Social Connect. And we have today members of Global Social Connect family whose cooperation as a team is always fruitful for us. We are joined by the students and teachers from Dewan Public School Meerut, KK Inter College Meerut, Government Girls Inter College Surat, and apart from these we have students, teachers, parents, mentors, even grandparents from all over the world. We welcome you all in today's show. Welcome all of you. So without wasting a time, मैं अब hand over microphone to Mr. Abhishek Sharma. So please continue. Thank you, Richa. पहले मैं ग्लोबल, मेरी आवाज सबको आ रही है? जी। पहले मैं ग्लोबल सोशल कनेक्ट की तरफ से
अपने तीनों जो गेस्ट हैं उनका जो है अभिवादन करता हूं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। उसके साथ ही मैं पहले सारे बच्चों का जो भारत के डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट कोने से, और बहुत से बच्चे तो मैं देख रहा हूँ भारत के बाहर के भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि जो जिनकी रूट्स इंडिया के साथ कनेक्टेड है लेकिन वो भारत से बाहर हैं, तो वो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मैं उन सबका भी ग्लोबल सोशल कनेक्ट की तरफ से अभिवादन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ग्लोबल सोशल कनेक्ट ऋचा जी ने, मैंने और जो जीएससी के मेंबर्स हैं, हम लोगों ने जब बनाने की संकल्पना रखी है, इस सोच को जब हमने रखा, तो हमारा सोचना था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां पर हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं, उन लोगों को शेष समाज के साथ कनेक्ट कर सके, जिससे कि वो अपने अनुभव को ऐसे लोगों के को दे सके जिन लोगों को उन अनुभवों की आवश्यकता है, और उन अनुभवों से लाभान्वित होकर के वो आगे वो लोग प्रेरित हो सके और वो लोग समाज की सेवा में अपना बेहतर योगदान उन अनुभवों के आधार पर दे सके। तो उसी प्रक्रिया में, उसी क्रम में आज एक और कोशिश जीएससी की तरफ से हो रही है, और मैं गौरवान्वित भी हूं जीएससी के सेक्रेटरी के रूप में कि मुझे ये मौका मिल रहा है, या मैं इस क्षण का मैं भी एक हिस्सेदार और भागीदार हूं। तो आज जो हमारा विषय है, हमारा विषय, हम तकनीकी वैज्ञानिक चर्चा पर नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि हमारा मुख्य उद्देश्य और बच्चों को जोड़ने का और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को जोड़ने का हमारा उद्देश्य ये है। अगर हम इस कोविड के दौरान में भी देखें, चाहे पहले हम महत्व समझें या ना समझें, पर इस कोविड के दौरान में देखें तो इस दुनिया को बचाने के लिए हर कोई विज्ञान की तरफ ही देख रहा है, विज्ञान से ही अपेक्षाएं कर रहा है कि वो इस दुनिया को शायद बचा ले। जिस तरीके की विपदा, आपदा इस दुनिया पर आई हुई है, तो उसको समाधान विज्ञान में ही दिखाई दे रहे हैं। आज अगर बच्चों की शिक्षा रुकी है, तो उस शिक्षा को कैसे दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा, इसके लिए भी लोग समाधान के लिए विज्ञान की तरफ ही देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था को किस तरह से एक नए स्वरूप में लाया जाए, अर्थव्यवस्था नए ढंग से आ सके और लोग वापस अपनी आर्थिक गतिविधियां कर सके, तो उसमें भी वो विज्ञान से कुछ नवाचारों को, कुछ इनोवेशंस को लाने की अपेक्षाएं कर रहा है कि वैज्ञानिक तरीकों से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में हमारे दैनिक जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो विज्ञान से अछूता हो। लेकिन अगर मैं भारतीय समाज में देखूं, तो भारतीय समाज में हम लोग विज्ञान का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम घटनाओं को, या हम जो भी अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, क्या उनको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या हम उनको वैज्ञानिक नजरिए से देख रहे हैं? क्या हम उन बातों के पीछे के वैज्ञानिक पक्ष को समझ रहे हैं? उसको लेकर के एक वाद विवाद भारत में हमेशा रहा है। तो आज हमारी कोशिश, जीएससी के तहत हमारी कोशिश एक ऐसे समाधान की ओर बढ़ने की है, बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए प्रेरित करने की है। इसलिए हमारे जो तीनों ही गेस्ट हैं, वैसे तो वे अपने अपने विषयों के महारथी हैं और वो अपने विषयों को बहुत गूढ़ तरीके से जानते हैं, और शायद वो जो बातें करते हैं, हम जैसे सामान्य लोगों को वो बातें समझ में भी कम आएंगी। लेकिन हमने उनसे आग्रह भी यही किया कि वो बच्चों को ध्यान में रख करके, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक जिज्ञासा प्रेरित करने के दृष्टिकोण से, उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के उद्देश्य से, और विज्ञान कितना मजेदार भी है, विज्ञान कितना जरूरी भी है, और विज्ञान कैसे उनके भविष्य निर्माण का रास्ता तय करता है, उस दृष्टिकोण से वो हमारे बच्चों को मार्गदर्शित करें, हमारे उनके माता पिता को मार्गदर्शित करें। ये आज के कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है। तो इसी प्रोसेस में मैं चाहता हूं कि मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर एच.एस. शर्मा से करूं। हमारे जो तीनों गेस्ट उनमें मैं डॉक्टर एच.एस. शर्मा से शुरू करना चाहता हूं। डॉक्टर एच.एस. शर्मा वैसे तो न्यूक्लियर साइंस के एक्सपर्ट हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट रहे हैं, पर यहाँ पर मैं चाहता हूं कि एक वो अपना वैज्ञानिक अनुभव के माध्यम से बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करें।
अब इस प्रकरण में मेरा एक सवाल है, हम क्या कर रहे हैं कि कुछ सवालों के साथ शुरुआत करते हैं जो सवाल समाज के बीच में है। तो मैं एक इस सवाल का उत्तर मैं डॉक्टर एच.एस. शर्मा से लेना चाह रहा हूं कि उसी के माध्यम से वो हमको गाइड भी कर दें कि अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में आज भी वैज्ञानिक बातें गैर वैज्ञानिक तरीकों से समझाई जाती हैं। आज बहुत सारी बातें हमसे कहा जाता है ये करा करो और ये मत करा करो बच्चों, लेकिन जब बच्चे उनके कारण पूछते हैं कि ऐसा मैं क्यों ना करूं, तो जब उनको माता पिता के द्वारा या दादा दादी के द्वारा या समाज के अन्य लोगों के द्वारा उनको कारण दिए जाते हैं, तो उनके वो बातें तो वैज्ञानिक है जिसलिए उन्हें रोका गया है ऐसा करने से, लेकिन जो उनको कारण बताए जाते हैं वो कई बार गैर वैज्ञानिक कारण भारत में ज्यादा प्रचलित होते हैं कि ये मत करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना, जिसके बाद ये नहीं खाना चाहिए, इस समय सो जाओ, इस समय उठ जाओ, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन उनके जो कारण दिए जाते हैं वो कारण गैर वैज्ञानिक कारण ज्यादा दिए जाते हैं। तो मैं इसी सवाल के साथ डॉक्टर एच.एस. शर्मा से बात शुरू करना चाहता हूं कि कैसे अगर हम कारण हमारे गैर वैज्ञानिक होंगे और उसके माध्यम से हम वैज्ञानिक बातें समझाना चाहेंगे बच्चों को, तो कैसे उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हम क्या करें, फिर क्या सही तरीका हो बच्चों को अपनी बातें समझाने का, वैज्ञानिक बातें समझाने का। तो मैं डॉक्टर एच.एस. शर्मा से आग्रह करूंगा कि इसके साथ वो अपनी बात को अगर कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो डॉक्टर एच.एस. शर्मा को मैं आमंत्रित करता हूं। अभिषेक जी बहुत बहुत आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, जो आपने इतना अच्छा प्रयास किया है। और कहने को हमने बहुत ऐसे अवसर नहीं देखे हैं कि जिन पर इस तरीके की बातचीत हुई हो, लेकिन मैं कुछ कोशिश करता हूँ। और मुझे हमारे जो श्रोतागण हैं या जो बातचीत सुन रहे हैं उनसे यही सबसे पहला उनको एक मोटिवेशन, खासतौर से बच्चों को, और बच्चों से जो थोड़े और बड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए ये है कि पहले तो आज के संदर्भ में वो ये इस चीज को एप्रिशिएट कर लें कि किसी भी सोसाइटी या किसी भी देश के विकास के लिए, समुचित विकास के लिए और बहुत अच्छे विकास के लिए हमें विज्ञान को जनमानस से और हमारे दैनिक जीवन से हमें उसे जोड़ना चाहिए। और इसी दिशा में ये सब प्रयास हमको करने हैं। अभी मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। पिछले दिनों मैंने एमआईटी यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक विषय पढ़ाया, और उसमें मुझे अर्थ एटमॉस्फेयर या अर्थ एनवायरनमेंट को पढ़ाने का अवसर मिला। वो न्यूक्लियर साइंसेज के कॉन्टेक्स्ट में था। उसमें मुझे ये समझने के लिए बातें मिली कि देखिए जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ का, उसमें करीब 79% नाइट्रोजन है और लगभग 21% ऑक्सीजन है, 0.9% आर्गन है, और बाकी सभी गैसेज जो हैं वो 1% से कम है। तो अभी प्रश्न आता है कि ये जो हमारी सृष्टि की रचना हुई है, इस सृष्टि की रचना में ये जो बेसिक एलिमेंट हमारा ब्रह्मांड का जब बना हुआ, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये आए, और इसमें कब धरा पे जीवन आया और या कब हमारा जीवन जो है समुद्र के अंदर आया, इसको समझना बहुत छोटे रूप में बहुत आवश्यक है। तो एक तो ये विषय है बच्चों के लिए कि मैं ये कहूँगा कि ये इस तरीके का पाठ्यक्रम और इस तरीके की चीजें बच्चों को पढ़ने के लिए सबसे पहले उपलब्ध हों। एक तो ये कहना है, एक विषय मेरा ये मानना है कि बच्चे, हमारा जो एनवायरनमेंट है तो उसका बहुत महत्व है, और जो भी समस्या आ रही है, चाहे कोविड की समस्या आ रही है या पोल्यूशन की समस्या आ रही है, वो हमारे एनवायरनमेंट या हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। अब मैं आपका ध्यान एक दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ, और वो है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है बच्चों को, जो खासतौर से छोटी क्लासेस में, 8th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में और या 8th क्लास से नीचे भी, हमें कुछ ऐसे प्रयोग लाने चाहिए कि जो बहुत ही साधारण तरीके के प्रयोग हों, और उनको करने के बाद भी, जैसा अभिषेक जी ने बताया कि हमारे बुजुर्ग लोग हमें बहुत सारी बातें बताते रहे हैं, उन बातों को महत्व से प्रायोगिक तरीके से हम उनको
संस्थापित कर सकें, वेरीफाई कर सकें, एस्टेब्लिश कर सकें कि ये बातें जो कही जा रही हैं ये किसी हद तक इस तरीके से इनको वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है, और ये है। अभी मैं एक जो छोटी सी बात है आपके सामने रखता हूं कि हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन बहुत होता है, और वैसे हम देखेंगे तो हमारी जो शुगर है जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं, जिसको हम चीनी कहते हैं, वो गन्ने के माध्यम से आती है। नाउ मेरा ये एक प्रश्न है अपने आप से, मैं समझने की कोशिश में हूँ कि क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की है कि जब गन्ना बोने के बाद में और जब उसमें रस आने लगता है तो किस किस मंथ में, मौसम के हिसाब से सितंबर अक्टूबर से लेके और मार्च अप्रैल तक जब तक गन्ना रहता है हमारे खेत में, उसमें जो हमारी शुगर है, ग्लूकोज है, फ्रूक्टोज है या जो भी हैं, वो कितनी मात्रा में रहती हैं और कैसे बदलती हैं? क्योंकि ये बेसिकली जो हम शुगर हमारा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे खाद्य सामग्री में आता है जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं, और जो डायबिटिक की बीमारी है, जो समस्या है, उससे इसका संबंध है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो शुगर्स हैं डिफरेंट प्रकार की, इनके एक्सपेरिमेंट हमारे स्कूल लेवल पे प्रयोग होने चाहिए, और बच्चों को इसको करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट ला के प्रयोग किए जाए, और कि भाई गन्ने का जो रस है वो किस प्रकार से उसमें दोनों की मात्राएं चलती हैं, या जब हमारा जो गुड़ बनता है उसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज कितना रह जाता है, उसके बाद में जो सेकंड और थर्ड लेवल की रिफाइंड शुगर है उनमें कितना रहता है, और ये चीजें बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए, और यही चीजें हम कर सकते हैं दूसरे माध्यम से। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, किसी ऑक्सीजन का जो एनवायरनमेंट है, ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसा हम जानते हैं, लगभग 19 to 20% है, और इसका बैलेंस जो बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से हम इस ऑक्सीजन को माप सकते हैं? हमने अपने जीवन में बचपन से हमने सुना है अपने बुजुर्गों से, अपने ऋषि मुनियों से, कि भाई जो पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी बहुत पूजा भी हम करते हैं और उसको हम महत्व देते हैं, लेकिन हम उसको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि भाई पीपल के वृक्ष से ऑक्सीजन बहुत आती है। अभी मुझे नहीं पता कि इसको किस तरीके से लेबोरेटरी लेवल पे वेरीफाई किया जा सकता है कि पीपल के वृक्ष में से ऑक्सीजन क्यों आती है और क्या उसका आधार है। इस तरीके के प्रयोग भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में ऑक्सीजन, जिनसे कि ऑक्सीजन मापन हो सके, और इस दिशा में मैं बच्चों का ध्यान एक तरफ और ले जाना चाहता हूँ, खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं, जो 8th क्लास तक के बच्चे हैं। क्या उन्होंने कभी ये सोचा है कि मान लीजिए अभी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अगर हमारे पास कोई पीपल का वृक्ष है और उससे हम पीपल का एक पत्ता निकालते हैं, एक लीव लेते हैं, उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, और क्या हम ये आकलन कर सकते हैं कि पीपल के एक वृक्ष पे कितने पत्ते हो सकते हैं, और अगर इनका सरफेस एरिया से ऑक्सीजन से कोई रिलेशन है तो ये एक सिंपल मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज, और ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस करता है ये क्वांटिटेटिव तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम छोटे छोटे लेवल पे और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, साइंस में यही है कि हमारे सामने जो भी चीजें आती हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन आती है, या जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं, या जो भी कथन आते हैं, उनको हम किस तरीके से प्रयोग की पृष्ठभूमि पे ले जाएं और उनका आकलन करें कि भाई ये किस हद तक कितने सही हैं, उसके बाद में उनको हम आगे बढ़ाएं। मेरे ख्याल में मैं अभी अभिषेक जी से कहूंगा कि इसमें कोई दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ यहाँ इसी पॉइंट पे, कि बच्चों के लिए दूसरे भी मैं उनका ध्यान दूसरे क्षेत्र की तरफ ले जा रहा हूँ। एनर्जी जो है हमारे जीवन के लिए, ऊर्जा जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सभी को मालूम है कि कोयला जो है वो हमारे जीवन से, जो कोयले बेस्ड जो ईंधन है वो धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है, और उसकी समस्याएं भी हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का
बहुत एडिशन करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं हैं और भी रिलेटेड समस्याएं हैं। तो मैं एज ए न्यूक्लियर जी आपकी आवाज आ रही है? जी जी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। तो यहाँ मैं बच्चों का ध्यान स्पेशली इस तरीके करना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारी साइंस तो पॉपुलर हैं, जैसे न्यूक्लियर साइंस में देखता हूँ कि वो हमारे समाज में और खास तौर से जूनियर लेवल पे या लोअर जूनियर लेवल, प्राइमरी लेवल पे पॉपुलर नहीं है। तो इन साइंसेस को भी पॉपुलर करने के लिए इनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा अपने लोगों से कि न्यूक्लियर साइंस, उसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन है वो बहुत सेफ है, और उसमें जो समस्याएं हैं, आप ये मान लीजिए कि जैसे एक टन कोयला है, उसके लिए यूरेनियम बहुत कम मात्रा में उसका रिक्वायरमेंट चाहिए आपको एनर्जी बनाने के लिए। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि यूनिवर्स में सबसे अधिक ऊर्जा आज के समय में अगर आती है तो न्यूक्लियर साइंस से आती है, और वो हमारा सन है, उसमें फ्यूजन होता है। तो हमारे पास दोनों तरीके के विचारधारा हैं एनर्जी प्रोडक्शन के। फिजन वेस्ट भी हैं जिसमें कि किसी भी परमाणु को तोड़ा जाता है, और फ्यूजन वेस्ट भी है जिसमें कि छोटे दो परमाणुओं को आपस में मिला के ऊर्जा बनाई जाती है। और ये विषय इतने व्यापक लेवल पे अब बढ़ रहे हैं कि ऊर्जा के साथ साथ जो न्यूक्लियर साइंसेज है उसकी एप्लीकेशन फूड प्रोसेसिंग में, मेडिकल साइंसेज में और एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में आ रही है। तो इनसे जो संबंधित एक्सपेरिमेंट्स हैं, मेरा ये मानना है कि उनको जो है तालुका लेवल पे जो अपने हमारे इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं, हमारे हाई स्कूल हैं और इवन हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, उनके कैरिकुलम में ये सब चीजें लानी चाहिए। यस मैं यहीं पर सर जो है बाकी के दो एक्सपर्ट्स को भी ले आता हूं, उन लोगों को भी, और फिर मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं कुछ और प्रश्न के साथ सर। ठीक ठीक। तो अभी मुझे सर की बातों से, डॉक्टर एच.एस. शर्मा की बातों से दो मुख्य बिंदु मिले जो कि हमें एक दिशा देते हैं। एक तो ये कि हर बच्चे को ओरिजिन ऑफ लाइफ को अच्छे से समझाना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि हमारे यहाँ जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि अगर बच्चे उसको समझने लगेंगे और माता पिता और टीचर्स उसको बहुत अच्छे से बच्चे को वैज्ञानिक ढंग से समझाना शुरू कर देंगे, तो बहुत सारी समस्याओं के समाधान वो खुद खोजना शुरू कर देगा और बहुत सारी समस्याओं को भी समझना वो शुरू कर देगा। उसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं वो ज्यादा अच्छे से समझेगा। साथ ही साथ दूसरी एक आइडिया जो सर ने दिया, वो सर ने आइडिया दिया कि अगर विज्ञान को प्रयोगों से समझाया जाए, साधारण तरीके के प्रयोगों से समझाया जाए, तो बच्चों का इंटरेस्ट भी पैदा होगा और विज्ञान में रुचि बहुत बच्चों की बढ़ेगी और उनकी वो समझ भी बढ़ेगी। बस इस मामले में आज भाग्यशाली भी है कि हमारे बीच में डॉक्टर दीपक शर्मा हैं, जिन्हें भारत सरकार ने 2 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए हैं। दीपक शर्मा सर जो हैं मेरे कक्षा 8 में मेरे टीचर थे, क्लास 8th में मेरे साइंस के टीचर थे दीपक शर्मा सर। और मुझे उन दिनों से याद है कि हम लोगों ने एक स्कूल में एक लैब बनाई थी और हम वहां पर जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें उनको समझने के लिए सर प्रयोग करवाया करते थे हमको। मैं भी सर की टीम में था जब मैं क्लास 8th में था। तो शुरुआती सिपह सलारों में से एक होगा सर का। शुरुआत में हमें जगह मिली थी स्कूल में, बाथरूम के ऊपर एक छोटा कमरा हुआ करता था। हमको पहली लैब के लिए गवर्नमेंट स्कूल में बिल्डिंग की समस्या होती है, तो हमको वो कमरा दिया गया था कि तुम्हें अगर कुछ वैज्ञानिक प्रयोग करने तो बाथरूम के ऊपर वाला कमरा है वो कर लो। तो हमने कहा चलो कमरा तो मिला हमें कम से कम, तो हमने वहां पर शुरुआत की थी और सर ने वहां से प्रयोग शुरू कराए थे और वो क्रम सर का आज तक जारी है। और इसीलिए सर जाने जाते हैं कि सर छोटे छोटे प्रयोग करा करके विज्ञान समझाने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं और विज्ञान में रुचि पैदा करते हैं। तो मैं बस इसी नोट के साथ दीपक शर्मा सर को आमंत्रित करता हूं और मैं सर से उम्मीद भी करता हूं कि वो एक आधा प्रयोग जो है अभी यहाँ पर भी बच्चों को जरूर दिखाए। मुझे मालूम है सर के पास इतने सारे प्रयोग हैं कि वो ऑनलाइन डिजिटल तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो सर एक कोई अच्छा प्रयोग भी हमें आपसे अभी चाहिए, एक नहीं चाहिए तो कई सारे, लेकिन एक तो अभी तुरंत चाहिए, जिससे जो एच.एस. शर्मा सर का सुझाव है वो आज यही जीएससी के मंच से इंप्लीमेंट भी हो जाए। तो मैं सर को आमंत्रित करता हूं, दीपक सर को।
थैंक यू अभिषेक। मैं यहाँ काफी सारा समय मेरा जो ना टेक्निकल चीजों में खर्च हो गया, तो जो प्रयोग की तैयारी मैं कर रहा था उसमें मुझे थोड़ा सा समय लग गया डिस्टरबेंस में, क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम हमारे देश की आज भी उतनी ही बनी हुई है, चाहे भले ही हम 4G में आ गए हों, लेकिन ये समस्या और इसके लिए उतने व्यवहारिक और उतने फैमिलियर अभी भी हमारा हिंदुस्तान नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल है। और सभी को नमस्कार। सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी था अपने काम में, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो अभिषेक, अभी प्रयोग तो बहुत सारे हैं, और सबसे पहले मैं जो हमारे देश की मानसिकता है उसके ऊपर एक प्रयोग है मेरे पास में, और ये प्रयोग हमारे जीवन से जुड़े हुए प्रयोग हैं। अगर हम देखा जाए तो हर आदमी एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करता है, जोड़ने की बहुत परसेंटेज है, कम है। हालांकि हम एक आदर्शवादी उस मुखौटे पे ज्यादा है कि साहब नहीं हम जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मानसिक रूप से हमारे दिमाग में दूसरों को डिवाइड एंड रूल वाली मानसिकता के साथ जीते हैं हम लोग। और ये प्रयोग भी बिल्कुल वैसा ही है कि ये 2 गिलासों को मैंने जोड़कर इसके अंदर 2 बॉल रख दी। अब बॉल के साथ में मैं बच्चों से सभी से दिमाग लगाने के लिए कहूंगा कि अपने घर पे भी बना सकते हैं ये चीज। 2 प्लेन ग्लास लीजिए, उसके अंदर 2 प्लास्टिक की बॉल डाल दीजिए और उसको टेप से चिपका दीजिए। उससे क्या होगा कि अब आपके पास ये 2 बॉल इसके अंदर हैं। यहां से अब क्योंकि हमारी मानसिकता होती है लोगों को तोड़ने की, उनमें झगड़ा कराने की, तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों लोग सभी बच्चे अपने अपने घर पे इस प्रयोग को करके देखें प्रैक्टिकली कि क्या हम इन दोनों बॉलों को अलग अलग कर सकते हैं। येलो बॉल को राइट कॉर्नर पर इस तरफ ले जाएं और ये पिंक बॉल को इस तरफ ले जाएं। पिंक से मुझे याद आया कि आजकल लोनार झील जो है हमारे देश की, उसका रंग पिंक हो गया था, गुलाबी हो गया था, और अब वापस अलग आ रहा है, वो कलर उसका चेंज वापस हो रहा है। खैर, वो हेलोआर्किया जो एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ। तो कैसे हम कर सकते हैं कि दोनों अलग हो जाएं? तो अपने दिमाग में लगाइएगा और इसे कोशिश करते हैं कि हम इसे इस तरह से करते हैं, इसे तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, लेकिन ये बॉल ऐसे नहीं आती। हम लोग देसी तरीके लगाते हैं जिसमें अकल नहीं लगाते, लेकिन अकल होती है जरा सा ट्विस्ट करा तो चीजें बदल जाती हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये अलग हो सकती है। मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। क्या ये टेबल दिख रही है अभिषेक? रही है सर। ये प्रयोग मेरा दिख रहा है यहाँ पर, ये मुझे थोड़ा डाउन करना पड़ेगा कैमरा थोड़ा अच्छा। सा। अब ठीक है? हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ओके, मैं इसे थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। आई होप अब ठीक होगा, क्योंकि मुझे चमक नहीं रहा उसमें। ठीक है, अगर हम इसमें जरा सा माइंड लगाएं, बहुत कम दिमाग हमको लगाना है, ये दोनों बॉल अलग हो जाएंगी। कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ इसे छोटा सा ट्विस्ट कर देना है, हल्का सा घुमाइए। ओ, आपने देखा ये बहुत ज्यादा हल्की है तो तुरंत वापस आ जाती है। अभी दोनों बॉल अलग हैं, देखिए ये ग्लास थोड़ा ज्यादा वो है तो इसलिए वो कर रहा है, लेकिन दोनों बॉल अलग हो जाती है घूमने से। ऐसा क्यों है? कॉपी पे नोट करें सभी बच्चे कि ऐसा क्यों है। हालांकि जिन बच्चों को इन सवालों के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं उनको समझने में दिक्कत होगी, तो मैं चाहूंगा कि वो हमारे YouTube चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, विज्ञान आओ करके सीखे पे। लेकिन जब हम किसी चीज को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो कोई ना कोई फोर्स इसमें लगता होगा, तो तभी ऐसा होता है कि ये बॉल दोनों भागती है, दोनों अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। और वो कौन से फोर्स होते हैं? 2 फोर्स होते हैं, हिंदी में अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल कहते हैं, और इंग्लिश में होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो जो केंद्र की तरफ आता है, और सेंट्रीफ्यूगल वो जो बाहर की तरफ को जाता है। तो इस प्रकार से दोनों फोर्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो रोटेट करने से ये फोर्स अपने बाहर की तरफ,
अगर हम इस बॉक्स में यानी कि इस गिलास की इसमें छेद कर दें तो अगर घुमाए तो ये बॉल दोनों बाहर निकल जाएंगी, इस तरफ नहीं रहेंगी। तो इस तरीके से हम इस प्रयोग को कर सकते हैं आराम से। अपने बॉल थोड़ा हैवी होनी चाहिए, इसमें हल्की वाली है तो एकदम से कर जाती हैं ये, इसको हम लोग कर। दूसरा एक चीज और, मैं बहुत सिंपल सी बात अपनी लाइफ के साथ जोड़ना चाहूंगा जिंदगी के बच्चों को। हम लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं और शरारत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा होगा, ये दूसरा प्रयोग के बाद बीच में ब्रेक लेंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद इसको अगर हम कंसंट्रेट करते हैं तो हाथ जल जाता है। ये सभी बच्चों ने किया होगा, आई होप सो। किया है। क्या जी, आपने भी किया होगा बचपन में। अभिषेक तुमने तो किया होगा, याद होगा। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग जब कंसंट्रेट करते थे तो इससे हाथ जला दिया करते थे, कागज में आग लगा दिया करते थे, पेपर में जी। इससे मैं एक चीज बताना चाहता हूं जिंदगी में कि अगर हम इसको हिलाते रहेंगे तो कागज में आग नहीं लगेगी, इसको स्थिर रखेंगे तो कागज में आग लग जाएगी। ये साइंस है। लेकिन अगर हम जिंदगी के लक्ष्य को भी हिलाते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, एक जगह कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो वहां पर भी आग नहीं लगने वाली, उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। अगर आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो इसको भी, लाइफ के गोल को भी कंसंट्रेट फोकस कर दीजिए। अभी से पढ़ाया करते होंगे जरूर अपने उसमें लेक्चर में, कंसंट्रेशन और फोकस कितना जरूरी है। तो इससे ज्यादा बेहतर और तरीका नहीं हो सकता मेरे पास कि हम लोग इस तरह से कंसंट्रेट करें ताकि चीजें फोकस हो और उसको लक्ष्य को पा लें। नहीं तो आग नहीं लगेगी कागज में और ना ही हाथ जलेगा, और जो मजाक के तौर पर हम लोग किया करते थे। तो अभी मैंने ये दो प्रयोग कर दिए हैं और अभी बीच में ब्रेक में या शुरू रखूं, मैं जारी रखूं अभिषेक? सर आप कुछ और बताना चाहें बताइए जी, फिर मैं डॉक्टर विक्रम। चलिए कोई बात नहीं। मेरे पास ये 3 गिलास हैं, इसी बीच में मैंने यहीं पर ही तैयार किए हैं अभी। और इन 3 गिलास में अगर आप देखेंगे, इसमें एक पानी गिलास पूरा भरा है, ये भी पूरा भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है। यहाँ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। इसमें मैंने 3 से 5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। थोड़ा सा और डाल देता हूं मैं जिसमें, इसको नमक को डालने के बाद इसको मैंने पानी के अंदर, आप अपने घर पर भी कर सकते हैं सभी बच्चे इसको। मैं ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं बताऊंगा जो आप घर पे नहीं कर सकते हो। केवल जो चमत्कार वाले होते हैं उनको मैं मना करता हूं, वो घर पे ना करने, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट करते हैं उनको तैयारी के साथ में। अगर मैंने इसमें नमक घोल दिया और एक घर में छोटा आलू लिया तो क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। सोचिए, अपना दिमाग लगाइए और देखिए कि शायद ये आलू नीचे डूबेगा नहीं। इससे एक चीज और याद आ रही होगी आपको, अभी बताएंगे। दिमाग लगाइए कि क्या क्या चीजें एकदम से याद आई कि ये पानी में ऊपर तैर गया। दूसरा, आधा गिलास पानी लिया, उसमें मैंने 3 चम्मच नमक घोला और उसे घोलने के बाद एक ये आलू लिया, इसको मैंने इसमें डाल दिया। पानी के ऊपर, क्योंकि यहां भी पानी के ऊपर रुक गया, ये भी पानी के ऊपर रुक गया। अब मैंने इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट और करता हूं। और पानी लेता हूं और ये कीप लेता हूं और इस गिलास को पानी से भर देता हूं। ये पानी में आधा गिलास में ये आलू बीच में है
और ये प्लेन वाटर है, इसमें मैंने कोई भी नमक, कोई भी किसी भी प्रकार का सॉल्ट इसमें नहीं डाला है। मैंने क्या काम किया, इस आलू को लिया और इसमें पानी थोड़ा भर देते हैं, थोड़ा रहने दे, कहीं बाहर निकल जाएगा, और इस पानी में मैंने इस आलू को रख दिया। अब आप देखिए, तीनों में इस गिलास में पानी में आलू नीचे है, इसमें बीच में है, इसमें ऊपर है। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो सोचे और दिमाग लगाएं अपना कि ऐसा कैसे हो रहा है। चलिए कॉपी पे नोट करेंगे आप। नमक से कुछ बच्चों ने समझ लिया होगा, पानी की डेंसिटी भर गई, ज्यादा हो गई नमक से, और इसके साथ ही वो झील का भी कारण जुड़ा हुआ है। जो बायोलॉजी वाले सर बैठे हैं वो समझ सकते हैं आसानी से, जो बायोलॉजी के लोग भी हैं। इसकी डेंसिटी से आपको याद आ रहा होगा एक मृत सागर है कहीं दुनिया में। सोचिए, ये सवाल मैंने आपको दे दिया कि मृत सागर कहां पर है, और भारत में ऐसा कौन सी जगह है सागर की जहां पर आप तैर सकते हैं ऊपर। अगर किसी को सवाल आ रहा हो तो जरूर बताइएगा, चाहे वो चैटिंग बॉक्स में लिख दे, और अभिषेक मुझे बता दे किसी बच्चे ने बताया है। रेड सी लिखा है कुछ ने जी, रेड सी, संबल लेक नहीं, सांबर लेक नहीं, ये लोनार लेक है जिसमें सॉल्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या भारत में ऐसा कोई सागर भी है जहां पर इंसान तैर सकता है। हमने किताबों में पढ़ा है कि एक डेड सी भी है जहां पर इंसान लेट कर किताबें पढ़ सकता है, ये किताबों में फोटो भी छपता रहा। तो क्या भारत का समुद्र का कोई हिस्सा ऐसा है जहां पर हम इस तरीके से तैर सकते हैं और डूबते नहीं है? प्रैक्टिकल मैंने बहुत बार किया है, उसमें उस समुद्र में जाके किया है मैंने। ये बिल्कुल ठीक वही एक्सपेरिमेंट है। जो सीनियर लोग हैं, एस सी शर्मा सर हैं और दूसरे सर हैं, ये लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लेकिन बच्चों के लिए है ये बात। तो मैं आपको बता दूं कि ये, जी आया कोई जवाब? चिल्का लेक लिखा है। चिल्का लेक नहीं है, समुद्र सागर की बात कर रहे हैं हम, समुद्र की बात कर रहे हैं हम, सी की बात कर रहे हैं। चलिए केरल का मैं बता देता हूं। केरल में त्रिवेंद्रम में आप कोवलम बीच पे जाते हैं तो वो जो छोटा सा पार्ट है उसमें कभी जाइए, और उसके अंदर 10 से 15 मीटर अंदर जाने के बाद आप पानी के ऊपर तैरने लगते, फ्लोटिंग करने लगते हैं, और आप डूबते नहीं हैं। कभी उस एक्सपेरिमेंट को जाके करिए, पक्का दावे के साथ कह रहा हूं, नहीं डूबेंगे उसमें। कारण डेंसिटी ज्यादा है, जैसे कि इस पानी की है और आलू तैर रहा है, ऐसे ही तैर रहा है। यहां साल्टी लेक की बात करें, लेक जो आजकल काफी चर्चा में है, महाराष्ट्र की बुलढाना डिस्ट्रिक्ट है, बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, वो जो लोनार लेक है उसके अंदर सॉल्टी वाटर है, और जब पानी कम हो जाता है सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, 10 से ऊपर हो जाता है पीएच उसका मान। तो वहां पर एक हेलोआर्किया नाम का एक बैक्टीरिया है जो डेवलप होता है बहुत बड़ी मात्रा में, और उसका जो बायोमास होता है, उस बायोमास के अंदर गुलाबी रंग की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पानी वहां का, क्योंकि उसकी मात्रा विकास उसके बहुत सारी मात्रा में आ गया और सभी में गुलाबी रंग आ गया, तो पूरा पानी गुलाबी रंग का दिखाई देने लगता है। लेकिन अभी बारिश हो गई है, जून के महीने के फर्स्ट वीक में ऐसा था, कलर चेंज हो गया था, लेकिन अब दोबारा से वापस जैसे ही बारिश शुरू हो गई वहां का कलर वापस आने लगा है उस झील का। ये खबर अभी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। अब हमने इसमें आधे गिलास में किया, तो उसके पीछे का कारण ये है कि आधे में डेंसिटी है, ऊपर प्लेन वाटर है। अभी मैंने सिंपल पानी उस आलू के ऊपर डाला तो आलू बीच में आ गया, ताकि इसको चमत्कार, बच्चों को एक क्यूरियोसिटी होती है, पहले हम तीनों दिखाते फिर बाद में समझाते, लेकिन मेरे पास इतने गिलास नहीं थे कि मैं पहले दिखाता और फिर एक्सपेरिमेंट करके समझाता।
और ये प्लेन वाटर है, इसकी डेंसिटी सबसे कम है, तो चीजें इसमें डूब जाती हैं। तो प्लेन वाटर में डूबना आसान होता है और डेंसिटी वाले खारे पानी में डूबना मुश्किल होता है। उसमें तैरा जा सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, पानी को देख के आराम से आप उसमें अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी जान को बचा सकते हैं, डूबने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है डेंसिटी का सबसे प्रैक्टिकल, बढ़िया, मजेदार एक्सपेरिमेंट। और आप अपने घर पर 3 गिलास लेकर आज मम्मी की रसोई में से थोड़ा सा नमक चुराकर और 3 आलू के साथ इसे कर सकते हैं और मजा आएगा इसे करने में। और तब उन सबके घर के परिवार के लोगों को भी आप चमत्कार दिखा सकते हैं और साथ के साथ ही डेंसिटी का चैप्टर भी समझा सकते हैं। तो ये भी एक मजेदार प्रयोग है साथ में। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। और इससे ये मैसेज आप दे रहे हो कि कैसे माता पिता अपने बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट छोटे बच्चों में क्रिएट कर सकते हैं और वो चीजों को केवल सुने नहीं बल्कि होते हुए देखें, तो वो उनके जीवन के साथ जुड़ जाएंगी, इसके साथ ही वो जुड़ जाएंगी। बिल्कुल, तो जो सर ने, अजय शर्मा सर ने सजेशन दिया था, वो आपने जो है उसे प्रैक्टिकल कर दिया है। बिल्कुल, लाइव तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो माता पिता अगर सजग रहे, माता पिता अगर खुद अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, तो वो अपने बच्चों के अंदर उसको आगे बढ़ा सकते हैं और ये हमें चाहिए भी। थैंक यू सर। मैं आपके पास अभी दोबारा आता हूँ सर। हाँ। फिर से आऊंगा, आप अपने 1-2 प्रयोग और हो तो रख लीजिए। नहीं, बहुत सारे रखे हैं, आप अच्छा, मुझे बताते रहिए, मैं टेबल पे से उठाता रहूंगा और चलाता रहूंगा। जी सर। अब मैं जो हूँ, हमारे तीसरे गेस्ट जो है डॉक्टर विक्रम, मैं उनके पास आता हूँ। डॉक्टर विक्रम के पास इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस भी है, आईआईटी का एक्सपीरियंस है सर, आईआईटी से पढ़े हैं। उसके बाद अब वो यूएस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं। आपके पास सर इंडियन सोसाइटी का भी एक्सपीरियंस है, अब आप यूएस सोसाइटी के बीच में भी हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी आप देख रहे हैं। तो आप, मेरा आपसे जानना है कि आप क्या डिफरेंसेस देखते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए जो काम किया जा रहा है और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर क्या काम किया जा रहा है, और आप कुछ मैसेज देना चाहते हो इंडियन सोसाइटी को कि वो कैसे सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्परामेंट को क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों में खासकर। तो अगर कुछ आपकी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पर आप हमें गाइड कर सके सर। श्योर। तो मैंने जो अभी एग्जांपल्स देखे इस कॉल पे, वही एग्जांपल्स यहाँ, जैसे मैं जब कक्षा 7, 8, 9 वैसे था, हम लोग किताब से पढ़ा करते थे, लैब के इतने रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, किताब से पढ़ते थे। लेकिन मेरे लाइफ में जब भी मैं कुछ पढ़ता था तो मैं उसको सोचने की कोशिश करता था, मेरे दिमाग में हमेशा एक फोटो घूमती थी। अभी जो भी बात चल रही है वो प्रैक्टिकली दिखाया जा रहा है। ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ज्यादा होता है। यहाँ देखता हूँ मैं बच्चों को स्कूल में हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है, तो उनके मन में कोई दो राय नहीं रह जाती कि ये कैसे वर्क करता है। अभी जैसे सर ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया तो वो बहुत आसानी से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, और जो चीज देख ली गई हो वो भूल नहीं सकते फिर। तो इस तरह से अगर समझाया जाए जो सर ने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया, वो बहुत ही वही एक तरीका है साइंस को बहुत अच्छे से समझने का। साइंस वैसे तो देखिए हमारे दुनिया में साइंस हमारे अराउंड चल ही रहा है, आप देखे या ना देखे वो आपके ऊपर है। सूरज, चांद, तारे वो सब सारे घूम रहे हैं ऊपर, वो जब हमें नहीं पता था कि घूम रहे हैं। अर्थ जब गोल थी हमें नहीं पता था कि गोल है, तब भी वो गोल थी। कहने का मतलब है साइंस हमारे इर्द गिर्द हो ही रहा है, उनके जो नेचर के जो लॉज हैं साइंस के वो भी फिक्स्ड है। साइंस जो हमारा प्रयास है सीखने का वो ये है कि उस नेचर को, हमारी दुनिया को किस तरह से हम समझ सकें। तो ये जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये करके अगर देखा जाए तो हम उस साइंस के एक चीज को समझ पा रहे हैं। वो यहाँ पे ज्यादा होता है, इंडिया में बहुत कम होता था जब मैं जब स्कूल में था। लेकिन अब मेरे सुनने में आता है कि अब थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर करके लोग दिखाते हैं, और वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है साइंस को समझने का। जी सर। यही पर सर एक सवाल और भी है, क्योंकि मौका आपसे बात करने का मिला। हमारे आज के सेशन के अंदर बहुत सारे बच्चे वो भी हैं जो क्लास 11th में या क्लास 12th में हैं, और जो बच्चा क्लास 11th और 12th में रहता है उसका एक ही सपना रहता है अगर साइंस साइड का है कि मुझे आईआईटी में जाना है। तो
आप जो है जो बच्चे प्रिपरेशन कर आईआईटी में जाने का सपना भी रखते हैं या उसके बाद आईआईटी से पास आउट होने का सपना भी रखते हैं, उनके लिए आप क्या गाइड करेंगे ऐसे साइंस के स्टूडेंट को कि उनको किस टेम्परामेंट के साथ पढ़ाई करनी चाहिए? ठीक है, इसके बारे में तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़े से मैं बोल के काम निपटाऊंगा। देखिए, ऐसा है कि साइंस एक, मान लीजिए कि एक तरह का एक तपस्या है। ये जो पीएचडी डिग्री लोगों को मिलती है उसको डॉक्टरेट इन फिलोसफी बोलते हैं। वो मेरे ख्याल में इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है चीजों को। साइंस कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि साइंस कठिन नहीं है, लेकिन इसलिए जो चीज अगर कठिन हो जाए तो उसको फिर उसी हिसाब से ज्यादा टाइम लग समझना पड़ता है। आपको एक बहुत अंदर से एक, जिसको कहते हैं मोटिवेशन या दृढ़ विश्वास जिसको कहते हैं, वो रखना पड़ता है, और ये मान के चलना पड़ता है कहीं ना कहीं कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे लिए जो चीजें काम की थी वो ये थी कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसे मेंटर्स आए। मेंटर मतलब मान लीजिए गुरु। वो गुरु इस फॉर्म में आए कि कभी किसी से मेरी बात हो गई, कोई प्रोफेसर है उनसे बात हो गई, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछ डाला, उन्होंने मुझे एक चीज ऐसी बता दी जो मुझे जिससे मेरे 10 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। कुछ नहीं समझ में आ रहा था, वो उन्होंने एक मूल मंत्र सा बता दिया, उससे मुझे, तो ऐसे ही मैं हमेशा ऐसे गुरु को ढूंढता रहता था जो मुझे कुछ सिखा दे, जिससे कि मेरी जो समझ है, जो एक समझ इधर है और एक दूसरी तरफ है, वो कनेक्ट हो जाए और मेरे दिमाग में एक शेप फॉर्म होता गया, नॉलेज फॉर्म होती गई। इस तरह से मेरा मतलब एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा था। मैं आपको भी बता दूं कि मेरी लाइफ में अभी तक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम में जो नॉलेज मैंने एक्वायर किया, उससे ज्यादा नॉलेज मैंने और कहीं नहीं एक्वायर किया। ये हमारे स्कूल में जो हमने पढ़ाई की थी, मैंने जो पढ़ाई की थी, उससे भी ज्यादा नॉलेज मैंने आईटी एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम में किया, क्योंकि आईटी एग्जाम का प्रिपरेशन एक अलग सिद्धांत पे चलता है। उसमें आपको साइंस को समझना ही पड़ेगा। आप ऊपरी से समझ के फॉर्मूला याद रख के काम नहीं कर सकते। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको उसके अंदर जाके सोचना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है। तो वो क्या चल रहा है, वो सोच मैं आपको बताऊं, क्लास 11 में तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ मतलब कैसे पढ़ते हैं, ये भी नहीं पता था। क्लास 12 में भी नहीं पता था। मुझे ये पता था कि हाँ ठीक है, मुझे करना है, और मैंने क्लास 12 के बाद 1 साल अपना ड्रॉप किया। उसके बाद मैंने उसमें कोचिंग सेंटर या कुछ ज्वाइन करके चीजों को समझना शुरू किया। तब मुझे रियली समझ में आया कि साइंस को कैसे पढ़ते हैं। तो मैं ये कहूंगा, साल ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। क्लास 11-12 में ही जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल की पढ़ाई करें, और साथ ही साथ ये एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग बहुत कठिन है करना। किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या करस्पॉन्डेंस कोर्स से कुछ भी करके वो क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो तो ये सोचने की कोशिश कीजिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है, आपने तो पढ़ लिया है, और उससे आप अपने नॉलेज को और क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो ना सिर्फ आईआईटी में आप जाएंगे, आईआईटी ही क्या, कोई और इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, आप जहां भी जाएंगे वहां पे आप अच्छा ही करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अभी तक भी मेरे जो कॉन्सेप्ट जो बने हैं वो मैं अभी तक यूज कर रहा हूं। तो आईआईटी का ड्रीम ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ तो कुछ और नहीं कर सकते। मेरा भी जहां मैं चाहता था वहां नहीं हुआ, लेकिन कहीं और हुआ। ठीक है, जिंदगी में जितना हो सके उतना करते आगे बढ़ते रहिए, निराश होने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ कोशिश अपनी पूरी करनी चाहिए। उसके लिए आप अपने आप को आके वैसे कि भाई जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सवालों को देख के आप समझें कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। उनको नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर और जरूरत है कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करने की या और अच्छे तरीके से समझने की। थैंक यू सर। बात बिल्कुल सही है, और बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जो कि आईआईटी से नहीं हैं लेकिन वो देश के बड़े वैज्ञानिकों में जाने जाते हैं। और तो यस, हमारे को करना क्या है वो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए रास्ते कई हो सकते हैं वहां तक पहुंचने के, लेकिन क्लियर ये होना चाहिए कि करना क्या है।
बनना क्या है वो भी नहीं, महत्वपूर्ण है करना क्या है। हम बन भी जाएंगे और रास्ता भी हमें कोई ना कोई उसके लिए मिल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल। इसी प्रोसेस में मैं वापस एक बार, मेरा एक सवाल डॉक्टर एच.एस. शर्मा जी के लिए भी है। मैं अभी लास्ट टाइम जब सर आपसे बात कर रहा था, आपसे मेरी वार्तालाप हो रही थी, तो आपके पास मैं देखता हूँ आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को बहुत ज्यादा। और मैं बीआरसी में भी सर के पास गया था, तो जब सर बीआरसी में थे तो बीआरसी में मैंने देखा कि वो कहने को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, पर वहां पर हिंदी पर भी रिसर्च चल रही है। वहां पर जो है बायो के से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स पर भी रिसर्च चल रही है। लगभग बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डायमेंशन जो कि ह्यूमन लाइफ से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट उन सारे एस्पेक्ट्स पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है रिसर्च कर रहे हैं। सिर्फ न्यूक्लियर रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं। उसका शायद मोटिव ये है कि साइंस को सोसाइटी के लिए यूजफुल बनाया जाए, सोसाइटी को बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए साइंस को यूज किया जाए जितना ज्यादा कर सकते हैं। तो मुझे उसी चर्चा के दौरान सर ये भी कह रहे थे कि बहुत जरूरी है इंडिया में, खासकर कि इंडिया के अंदर जो कहानियां हैं पुरानी, जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के पीछे के विज्ञान को खोजा जाए, क्योंकि उन सब में कहीं ना कहीं विज्ञान ही छुपा हुआ है। चाहे वो हमारी धार्मिक कथाएं हैं बहुत सारी, हमारी रीजनल स्टोरीज हैं बहुत सारी, कहावतें हैं बहुत सारी, उनके पीछे बहुत सारे, सर ने उस दिन गाइड किया था मुझे कि बहुत सारे जो है उनके पीछे वैज्ञानिक तत्व छुपे हुए हैं। अगर उन वैज्ञानिक तत्वों को खोजने की कोशिश की जाए, उन स्टोरीज को ग्राउंड बना करके, तो शायद हम अपनी बहुत सारे रोजगार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हम एंटरप्रेन्योरशिप नई तरीके की, जिसे हम कहते हैं स्टार्टअप्स, बहुत तरीके के हम खड़े कर सकते हैं इंडिया के अंदर या ग्लोब के अंदर, और हम अपनी बहुत सारी नई चुनौतियां जो आज सामने आ रही हैं, शायद उनके समाधान भी वहां से खोज सकते हैं, बशर्ते कि हम उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें और उनके पीछे के विज्ञान को खोजने की कोशिश करें। तो मैं चाह रहा था कि सर वो थोड़ा सा उस दिशा में मार्गदर्शन डॉक्टर एच.एस. शर्मा आप बच्चों का भी करें, क्योंकि भविष्य में ये केवल शायद एम्प्लॉयमेंट नहीं खोजेंगे, हम चाहते हैं कि अब जैसा माहौल है ये बड़े एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, ये केवल रोजगार नहीं खोजेंगे, रोजगार देंगे भी, ये नए नए स्टार्टअप्स इंडिया में लाएंगे। उस दिन हम एक चर्चा भी कर रहे थे कि इंडिया में उतने पेटेंट्स नहीं हो पाते हैं अभी भी, तो उसका क्या कारण है कि हम जितने पेटेंट, भारत की जनसंख्या जितनी, उसकी तुलना में पेटेंटों की संख्या भारत के अंदर बहुत कम है। तो हम कैसे उस दिशा में आगे बढ़े कि नए स्टार्टअप्स आए, नए पेटेंट्स आए, और हम अपना दृष्टिकोण क्या बनाएं। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, डॉक्टर एच.एस. शर्मा आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। रिचा सर को जरा मैं कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब अनम्यूट कर लीजिए सर आप। ओके ओके ठीक। अभी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। देखिए आपने बहुत ही आधारभूत कुछ प्रश्न किए हैं, और जिनके विषय को मैं समझने की और समझाने की कोशिश करता हूं। इसी दिशा में मैं दीपक सर को याद कर रहा हूं। अभी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं, और उसी श्रृंखला में मैं एक प्रश्न बच्चों से या अभिभावक या और दीपक सर से भी कह रहा हूं कि जब भगवान राम और रामेश्वरम से श्रीलंका गए थे, तो वो एक सेतु बना था, और उस सेतु में एक ब्रिज बनाया गया था। उसमें नलिनी नामक के इंजीनियर थे। तो मैं दीपक सर से कह सकता हूं कि दीपक सर बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम ऐसे पदार्थों की ईंट बना सकते हैं, ऐसे पदार्थों की पट्टियां बना सकते हैं कि जो पानी के ऊपर, मैं लकड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, जो पानी के ऊपर तैर सकती हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूं बच्चों के साथ में कि पदार्थों की दुनिया और पदार्थों का विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। और आप समझिए कि इस समय मैं उनको एक एक्सपोजर देना चाह रहा हूं कि हमारे इस समय जो न्यूक्लियर रिएक्टर चलते हैं, उसमें जो पदार्थ हैं वो इस तरीके के यूज होते हैं, जैसे स्टील्स हैं, जिरकोलॉय हैं, कि जिनको भी 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करना रहना होता है। और नए जो रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आएंगे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स,
उनमें और जो जहाँ पे नाभिकीय रिएक्शन होती हैं वहाँ पे टेम्परेचर 450, 500, 600, और भविष्य में जो नए रिएक्टर्स आएंगे उनमें 700, 800, और जो फ्यूजन रिएक्टर्स हैं उनमें और हाई टेम्परेचर के रिएक्टर्स होंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पदार्थों की दुनिया ऐसी है कि हमें नए नए पदार्थों को विकसित करना होगा, उन्हें समझना होगा। जैसे स्टील है, और स्टील में आजकल जो अधिकांश स्टील बनते हैं उनको हम घर में यूटेंसिल्स लेके, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जगह जगह यूज करते हैं, लेकिन जो स्पेशल एलॉयज जिनको बोलते हैं, जिनमें हाई टेम्परेचर की चीजें डाली जाती हैं, उनको ऐसा बनाया जा सकता है कि बहुत ऊंचे टेम्परेचर पे उनके साथ काम किया जा सकता है, और उनमें खराबी नहीं आती है, डैमेज नहीं आती है। इंग्लिश में जो वर्ड यूज करते हैं हम, डैमेज नहीं आती है। वो डैमेज जो है चाहे रेडिएशन की वजह से हो, या हाई टेम्परेचर की वजह से हो, या कोरोजन एनवायरनमेंट की वजह से हो। तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात में जो हमारे वक्ता सर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की, और उनकी बात को मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई विज्ञान जो है हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, और न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था कि भाई पेड़ से एप्पल गिर गया तो ग्रेविटेशन की थियरी आ गई, और आर्किमिडीज ने टब में बैठ के जो पानी निकाला तो डेंसिटी आ गई। इस तरीके से पूरी विज्ञान विकसित हो रही है। अभी मैं बच्चों के सामने एक बहुत ही सिंपल चीज रखना चाह रहा हूँ, जिसको कि मैं बहुत समय से सोचता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक त्रिफला करके जो हमारे हिंदुस्तान में आयुर्वेद में यूज होता है, और त्रिफला उसको कहते हैं कि दैट इज द 3 इंग्रेडिएंट्स इन दैट, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। मुझे ये मतलब कल्पना है कि ये इतनी औषधि इतनी पुरानी है आयुर्वेद में, और इतने व्यापक स्तर पर ये यूज होती है इंडिया में, खासतौर से हिंदुस्तान में, और हो सकता है बांग्लादेश में भी यूज होती हो, पाकिस्तान में भी यूज होती हो, अफगानिस्तान का मुझे पता नहीं है। ये इतनी महत्वपूर्ण औषधि है, और इसका जो है जनरेशन टू जनरेशन क्लिनिकल टेस्ट हो गया है, लेकिन हमारे पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हमारे पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हम उसकी जो है हम उसको चूर्ण के पाउडर के फॉर्म में बनाते हैं, और हम उसको केमिकली करेक्टराइज ये नहीं करते हैं, मेटलर्जिकली करेक्टराइज ये नहीं करते हैं कि जो पाउडर बनता है उसमें ग्रेन साइज कितना बड़ा होना चाहिए, और हम ये भी नहीं देखते हैं उसमें कि भाई उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटीज हैं, अशुद्धियां हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। कहने को हानि नहीं होती है, तो वो तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि इसमें बहुत स्कोप है। पूरे हिंदुस्तान में कई मतलब औषधियां जैसे डाबर है, ये सब चूर्ण बनाते हैं, लेकिन खाली 2 कंपनियां हैं जो कि चूर्ण की जगह टैबलेट भी बनाती हैं। एक बॉम्बे में है, झांडू फार्मेसी के नाम से मशहूर है, और एक हिमालय वाले जो है टैबलेट बनाते हैं। नाउ मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, इससे जुड़ी हुई विज्ञान क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। देखिए, जीवन को समझना और हमारी दिनचर्या, खाली हमारे बच्चों को ये एक अभी बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। मैं पाठ्यक्रम को बदलने की सलाह भी दे रहा हूँ कि बायोलॉजी और जो हमारा एनवायरमेंटल विज्ञान है वो हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को व्यापक तरीके से पढ़ाना चाहिए, और उसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, हिंदी में या मराठी में या मतलब तेलुगु में, तमिल में, सब में पढ़ाना चाहिए। उसमें कोई नहीं। अच्छा, अभी मुझे क्या कहना है, यहाँ पे कहना क्या है कि आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि त्रिफला जो है वो वात, पित्त और कफ, इन तीनों का बैलेंस करता है। नाउ साइंटिफिकली इसमें बेसिक रिसर्च की बहुत जरूरत है कि ये जो हम कहते हैं वात, पित्त और कफ है, किस तरीके से वो बैलेंस करता है, और उन एक्सपेरिमेंट्स को हम किस तरीके से कर सकते हैं हमारी लैब में, प्रयोगशाला में, और किस तरीके से उनको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। इन चीजों को करने से हमको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन, फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, और हमारे शरीर से जो विज्ञान है उससे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक बात और शेयर करनी है कि देखिए, जो हमारा शरीर है, जो भी भोजन हम करते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, च्यू करने के बाद में वो खाना हमारे आमा से, जिसको पेट कहते हैं, वहां जाते हैं, वहां पे डाइजेशन होता है। तो एक तो रिक्वायरमेंट ये होता है कि हम अच्छी तरीके से खाने को चबा के खाएं, और दूसरा ये होता है कि जब वो खाना डाइजेस्ट होता है तो वहां पे एसिड होते हैं। अच्छा, वो एसिड होने के बाद में आपका जो स्टमक है वो एसिडिटी होती है, वहां पे बहुत, उसमें
एग्जैक्ट में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 8 से 7 से 8 हाइड्रोक्लोरिक एसिड तक के लेवल की एसिडिटी उसमें होती है। अब ये होता है, शरीर की प्रक्रिया ये है जो बहुत पॉपुलर नहीं है हमारे जीवन में, कि एक लिमिट के बाद में हमारा तंत्र है उसमें जो पीएच है उसकी एसिडिटी कम होती है, वो न्यूट्रल की तरफ बढ़ती है, और एक लिमिट के बाद में फिर वो जो एल्कलाइन होती है। तो मेरा अपना विचार ये है कि इस पूरे सिस्टम को खाली हमारे डॉक्टर्स या वैज्ञानिक ही नहीं समझे, हमारे जो है आम आदमी के लेवल पे जो बिल्कुल एकदम विजिबल नहीं है उसको समझना चाहिए, और इसको समझने से हम बहुत सारी औषधियों को कर सकते हैं, उनका किस तरीके से वो काम कर सकती है उनको हम देख सकते हैं, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अभी अभिषेक जी ने जो एक प्रश्न किया है और एक सुझाव दिया है कि भाषा का हमारे जीवन से क्या, भाषा का हमारे जीवन से बहुत बहुत कुछ है जुड़ा हुआ है। अगर हम कोई भी विज्ञान और अपनी भाषा में करते हैं, चाहे हम पढ़ें या पढ़ाएं, तो उसका जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बहुत सिंपल होता है, और हमारी जो सोच है, जो आपने बताई IIT के जो हमारे महोदय उन्होंने बताई कि बेसिकली साइंस को हमको ग्राउंड लेवल पर समझना होता है, और जब हम साइंस को ग्राउंड लेवल पर समझेंगे तो हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं। और आज के समय में मैं सोचता हूँ कि इतनी आवश्यकता है कि जितना भी टेक्नोलॉजी और साइंस की लिटरेचर है वो अधिक से अधिक हिंदी और भारतीय भाषाओं में वो ओरिजिनली अदरवाइज दूसरे रूप में आना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है चाइना ने इंटरनेशनली पूरी इंपॉर्टेंट लिटरेचर को, इंजीनियरिंग लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर, उन्होंने सब कुछ लिटरेचर को चाइनीज में ट्रांसलेट कर दिया है। और वो एक बहुत बड़ा कारण है कि चाइनीज बहुत तेजी से मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर पाए। उसके दूसरे भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि ये जो देश है चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, इनमें बेसिक रूप में सभी तरीके की से उच्च साइंस और तकनीकी वो उनकी भाषाओं में पढ़ाई जाती है। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए, और साइंस को हमें अपने जीवन से जोड़ने के लिए भाषा को उसमें लाना बहुत है, मुश्किल काम है वो, लेकिन कोई भी काम जो पाथ ब्रेकिंग होता है वो मुश्किल ही होता है, और उसको हमें करने की कुव्वत क्रिएट करनी चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकती है। मैं कहता हूँ हमने बचपन में देखा है, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि हम गुड़ खाते हैं, यहाँ पे बूरा खाते हैं, शक्कर खाते हैं, और एक होता है रब्बी खाते हैं। साइंटिफिकली आप सभी देख सकते हैं कि इनमें साइंटिफिक डिफरेंस क्या है। इनमें साइंटिफिक डिफरेंस है कि जो गुड़ है आपका, उसमें जो फ्रुक्टोज है या ग्लूकोज है, उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो प्रोपोर्शन है, और जो राब जो बनती है वो जो है उसमें क्रिस्टलाइन शुगर्स होती है, एंड दे आर वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। तो मेरा ये सुझाव है कि स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री इन चीजों के ऊपर एक बहुत केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू, केमिकल इंजीनियर्स के सपोर्ट से बनाई जा सकती है, और स्मॉल स्केल में हम बहुत अच्छे तरीके के शुगर ऐसे बना सकते हैं कि जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक भी है, उपयोगी भी है, और हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं आगे तक जो वो ले जा सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। और यहाँ पर जो है दीपक सर मुझे सुन रहे हैं? क्या करें? जी सर, आप कुछ कह रहे हैं अभी? नहीं, मेरे पास एक पीपीटी है छोटी सी 3-4 सेक्शन की। अगर समय होगा तो उसे मैं बच्चों को एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहूंगा कि जो बच्चे उसमें ये देखना चाहेंगे कि एनवायरमेंट हमारा कैसा दिखता है। मेरे पास एक पीपीटी है, उसे शेयर कर सकते हैं। तो सर एक्चुअली शेयर कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ऋचा जी जो है उनके पास कंट्रोल्स थे, और अभी मेरे पास सूचना ये है कि ऋचा जी के फादर इन लॉ एक्चुअली बीमार चल रहे थे, और उनकी अभी बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन कुछ हो गई है, तो उन्होंने अभी मीटिंग जस्ट छोड़ दी है। तो अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन वो अभी हमारे साथ नहीं है। तो अभी जस्ट अभी उनका मैसेज आया है मेरे पास, तो उनके फादर थोड़े सीरियस इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। सर इधर जो है मैं दीपक सर को भी लाना चाह रहा हूँ दोबारा से। दीपक सर बात सुन रहे हैं मेरी? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर आपको, जस्ट अ मिनट सर, आप अनम्यूट कर लीजिए दीपक सर। जी सर, मैं वापस आपको ला रहा हूँ।
और मैं चाह रहा था कि यहाँ से आगे सर बच्चों के अंदर वही साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे बढ़ाया जाए, कैसे वो ज्ञान उनके लिए उपयोगी हो, इसको आप अगर प्रयोग के माध्यम से कुछ और समझाना चाह रहे हो आपकी तरफ सर। अब आगे देखिए, मैं मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके। मैं बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी में अभी सर ने बात किया, हिंदी भाषा में भी रिसर्च हो रहा है, इस पे भी अभी आपने जिक्र किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गूगल ने पूरी दुनिया के आंकड़ों को इकट्ठा किया है और उसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बात मैं बताना चाहता हूं बच्चों से और अभिभावकों से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वहां पर 80% हिंदी का मटेरियल खोज रहे हैं लोग बाग। भले ही वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हों, लेकिन वो बच्चे भी और उनके माँ बाप भी 80% मटेरियल हिंदी भाषा में खोजते हैं। ये एक गूगल का ये सर्च है और गूगल ने उसके लिए हिंदी में पत्रिकाओं को और लोकल जितनी भी आरएनआई पत्रिकाएं हमारी है, जैसे कि विज्ञान होकर किसी की हिंदी की पत्रिका है, उन सभी को हिंदी में प्रमोट करने के लिए सबको अपना अपना एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि आप लोग हिंदी में लिखें, ताकि लोगों की भूख है हिंदी में जानने की और समझने की। ये एक इंपॉर्टेंट बात सामने आई है। तो तब से हमने भी पूरा कंसंट्रेशन, हालांकि हमारी मैगजीन बाइलिंगुअल थी, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन अभी इंग्लिश को हमने कम कर दिया और हिंदी को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि हिंदी की जरूरत ज्यादा है और ये बहुत ही लोकल भाषा। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज है अगर आप समझना चाहते हो तो आप अपनी भाषा से ज्यादा, जो मातृभाषा होती है, जिस भाषा में आप पले बड़े होते हो, वो भाषा से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। अभी सर ने बताया कि यूएसए और अमेरिका और दुनिया देशों में प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल रोजमर्रा की क्लास में होते हैं उनके यहाँ। आधे घंटे, मैं फ्रांस में जब गया तो आधे घंटे पढ़ाते और आधे घंटे में टेस्ट लेते हैं, रोज टेस्ट चलते हैं। 18 साल तक की उम्र तक केवल 2 ही बार एग्जाम होता है उनके यहाँ, सब क्लास पास होते रहते हैं। जैसा अभी कोरोना में हमें सबको पास कर दिया, सभी बच्चों को। तो इस तरीके से मैं कुछ और चीजें बताना चाहता था कि खगोल की बात करते हैं। चलिए, खगोल में अभी जब हम बात करते हैं कि सब सर के बालों की संख्या कितनी है तो नहीं मालूम, और जब कहते हैं कि तारों की गणना, तारों की कितने होंगे कि जितने सर पे बाल हैं, हम लोग इस तरह के सवाल जवाब करते हैं। तो कभी हमने सोचा नहीं होता कि क्या हम तारों को भी गिन सकते हैं। स्टार काउंटिंग एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें पूरी दुनिया के बच्चे उस प्रयोग को करते हैं और उसमें शामिल होते हैं स्टार काउंटिंग में। तो मैं चाहूंगा कि जब मेरठ और भारत के बच्चे यहाँ शामिल हो रहे हैं तो उनको भी इस प्रयोग का एक थोड़ी सी झलक समझ में आ जाए। और आप सामान्यतः आप जानते हैं कि दिशाएं, आप जो डायरेक्शंस हैं, मेनली 4 होती हैं। अगर मैं इस कमरे की बात करूं और आप जिस कमरे में बैठे हो तो उस कमरे की बात करें तो 4 कोनों को हम 4 दिशाएं बता देंगे, लेकिन उनके बीच के 4 और हो गए तो 8 दिशाएं हो गई। और कुल मिलाकर दिशाएं जो होती हैं, सवाल देखिएगा और समझिएगा कि दिशाएं टोटल 10 मानी जाती हैं, 10 दिशाएं। तो 8 ये हो गई और एक ऊपर और एक नीचे, टोटल कुल मिलाकर 10 दिशाएं बनती हैं। तो स्टार काउंटिंग करने के लिए एक स्पेशल पाइप इस तरह का, अगर आप किसी कपड़े वाले की दुकान पे जाएंगे तो वहां से ये खोखला पाइप जिस पर कपड़ा लिपटा होता है वो बच जाता है, तो वो पाइप वहां से मिल सकता है। हालांकि मैं इसका डायमीटर जरूर बता दूं, मोटा होता है क्योंकि इसके अंदर, जब अंदर नली से देखेंगे तो अंदर लाइट का प्रकाश नहीं जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, टाइट मतलब डार्कनेस इतनी होनी चाहिए इस पाइप की। और 3.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होना चाहिए और 23 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए। अगर इस तरह का डिवाइस आप ले लें तो अभी अखबार में लॉकडाउन के शुरुआत में आपने देखा होगा कि तारों की गणना की जा सकती है और उससे अपने शहर का लाइट पोल्यूशन, अभी एनवायरमेंट की सर बात कर रहे थे एच.एस. शर्मा सर, लाइट पोल्यूशन की बात करते हैं, वातावरण में प्रदूषण की बात करते हैं, तो 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। लाइट पोल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण को काउंट किया जाता है और उसको इस पाइप की मदद से नापा जा सकता है। कहने के लिए अगर विज्ञान को समझना है और उसको प्रैक्टिकल प्रायोगिक तरीके से उसके आंकड़ों को निकालना है
तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट का यूज करें, खास तौर से बच्चों को समझने और समझाने के लिए। मैं खास तौर से कहना चाहूंगा, जैसे कि एक छड़ गाड़ के आप कहीं पर भी, जैसे ये पोल गाड़ रखा है मैंने, एक पोल गाड़ के आप उसकी परछाई से पृथ्वी की गोलाई को नाप सकते हैं, लोकल लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को नाप सकते हैं, अक्षांतर देशांतर को नाप सकते हैं, और रियल नॉर्थ किधर होगा दोपहर के समय में वो ज्ञात कर सकते हैं। बस आपके पास एक छड़ होनी चाहिए जो 90 डिग्री पर सीधी लंबवत परपेंडिकुलर खड़ी हो। खैर, इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि अब इससे तारों की गणना कैसे कर सकते हैं। पहले आप अपनी कॉपी पर एक चार्ट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर तक का एक टेबल बनाइए, और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में, या कहना चाहिए कि 7 से 9 के बीच में, 8:30 के बीच में, आजकल थोड़ा सा गर्मी का मौसम है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 8 से 9 का टाइम ले लीजिए आप। 8 से 9 के बीच में आप जमीन से 30 डिग्री ऊपर या 60 डिग्री ऊपर एक जगह फिक्स कर लीजिए कोई भी, और 10 दिशाओं में एक बार एक आंख से, इसमें अगर सपोज करिए 60 डिग्री पर, आप कॉपी पेन से लिखते भी रहे जो बच्चे देख रहे हैं, ताकि शाम को ये प्रयोग कर सकें। जमीन से 60 डिग्री पर इसे ले, और इस तरीके से मान लिया, सपोज करिए अभी मैंने ईस्ट डायरेक्शन में लगा लिया है, पूर्व में लगा लिया है 60 डिग्री पर, तो इसको हिलाना नहीं है। इसमें देख के ऐसे नहीं ढूंढना है कि हमें तारे ढूंढने, नहीं, एक जगह फिक्स कर दीजिए 60 डिग्री पर, और इस पर देखिए कि इसमें 3 4 5 कितने तारे नजर आ रहे हैं। तो जितने तारे नजर आ रहे हैं, तो नंबर 1 जो लिखा है टेबल में उसके आगे लिख लीजिए। मान लिया सपोज कर रही है आपको 3 तारे नजर आए, तो आप 3 लिख दीजिए उसके आगे। फिर आप आए ईस्ट और साउथ के बीच में आएंगे, ईस्ट और साउथ के बीच में आएंगे सेंटर में, तो वहां पर फिर देखेंगे, आपको ढूंढना नहीं है, ऐसे एक जगह फिक्स करेंगे और उसमें तारे दिखाई देंगे। सपोज करो आपको 2 तारे दिखाई दिए, फिर आप दक्षिण में यानी कि साउथ में जाएंगे, तो साउथ में आपको जाने के बाद में जो 2 दिखाई दिए दूसरे नंबर पे लिख लेंगे, अब तीसरा नंबर साउथ का आ गया, तो आप इससे देखेंगे, और उसके बाद सपोज करिए आपको 4 तारे दिखाई देंगे इस पाइप में से, इसके एरिया से, तो आप 4 लिख लेंगे टेबल में। और फिर दक्षिण से पश्चिम की ओर के बीच के सेंटर में चलेंगे, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, और इसमें सपोज करिए आपको एक भी तारा नजर नहीं आया, सपोज करिए, तो आप 0 लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है। फिर आप उसके पश्चिम में जाएंगे, पश्चिम में जाने के बाद जो तारे आपको दिखाई देंगे फिक्स करिए, मान लिया 2 तारे दिखाई दिए, तो आप 2 लिख दीजिए। और उसके बाद वेस्ट और नॉर्थ के बीच में सेंटर में जाइए, तो आपको देखा, और आपने देखा कि इसमें 3 तारे नजर आ रहे हैं, तो आप 3 काउंट कर दीजिए। और फिर नॉर्थ में जाइए, नॉर्थ में जाने के बाद आपने देखा, और इसमें जो ना वहां पर सप्तऋषि भी होता है, जिसे उर्सा मेजर आजकल दिख भी रहा है, उर्सा मेजर भी होता है, तो तारों की संख्या शायद हो सकता है ज्यादा दिखाई दे जाए, तो आप उसको देखेंगे तो उसमें हो सकता है 5 तारे आपको दिखाई दे जाए, 4 5 तारे, तो आप 5 लिख दीजिए, डोंट वरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जाएंगे, तो फिर आप इसी तरह से 60 डिग्री पर, लेकिन देखेंगे चारों तरफ 60 ही डिग्री पर या फिर 30 डिग्री पर, एक ही एंगल पर देखेंगे, एंगल को बदलेंगे नहीं। और सपोज करिए इधर आपको सिर्फ एक तारा नजर आया, तो आप उसपे एक तारा लिख दीजिए। अब आपके टोटल 8 दिशाएं हो गई। अब उसके बाद 2 आंखें हैं, एक ऊपर है और एक नीचे, तो नीचे तो जमीन में तारे नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो 2 आंखें हैं ऊपर ठीक 90 डिग्री पर ऊपर ले जाते हैं इस तरीके से, और एक बार इस आंख से और दूसरी बार इस आंख से तारों की गणना करते हैं। तो जो भी तारे आते हैं, तो टोटल मिलाकर 10 का जो टोटल आता है, उन तारों को हम गिन लेते हैं। मैं ये बताता हूँ, इस पाइप का जो एरिया है और ब्रह्मांड और सरफेस यूनिवर्स का जो एरिया है, उसकी कैलकुलेशन 690 बार आती है, कि अगर हम इसको चारों तरफ से घुमाएंगे तो उस एरिया को 690 बार कैलकुलेट करेंगे। तो उसका सरल आसान तरीका यह है कि 10 दिशाओं का जो टोटल आया, उस टोटल को 10 से डिवाइड कर दीजिए, जो एवरेज आया वो एवरेज अधिकतम 3.8 आता है, बहुत अच्छा माना जाता है, जिसका मतलब है कि अगर आपका एवरेज 10 से डिवाइड करने पर सारे तारों की गणना का
3.8 के आसपास आया तो लाइट पोल्यूशन कम है, यानी कि अंधेरा और गांव में ही ऐसा देख सकता है, संभव है, शहरों में नहीं। दिल्ली में तो ऐसी स्थिति भी आई है कि जब हम केवल 3 या 4 का टोटल आया पूरे 10 दिशाओं में और 10 से डिवाइड करा तो 0.3 या 0.1 से भी कम आया। तो इस ऐसी स्थिति में जहां 1 से कम डाटा आ रहा है, मतलब यह है कि लाइट पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर आप इस तरह के प्रयोग आप करेंगे जिंदगी में, तो आप अपने शहर, अपने मोहल्ले का चीजों को समझ सकते हैं कि तारों को गणना कर सकते हैं। और फिल्म का गाना भी वो याद कर सकते हैं, आसमान में लाखों तारे एक मगर ढूंढे ना मिला, देख के दुनिया की दिवाली दिल मेरा चुपचाप जला। बहुत पुराना गाना है, लेकिन ये विज्ञान पर बिल्कुल सटीक फिट बैठता है। तो इस तरीके से आप लाइट तारों की गणना भी कर सकते हैं। अगर आपके 3.8 तक आते हैं, यानी कि एक बार में जो हम इस आसमान में देखते हैं, तो टोटल हमारी आंखों से जो नजदीक तारे होते हैं वो लगभग 4000 तक दिखाई देते हैं। तो ये सच्चाई है और ये प्रयोग से हम इसको कैलकुलेट और गणना कर सकते हैं। लेकिन वो तभी दिखाई देंगे जब आपका लाइट पोल्यूशन बिल्कुल जीरो हो, जो कि संभव नहीं है। वैसे गांव देहात में हो सकता है। खैर, इसके बाद आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अपनी जिंदगी में, लाइफ में ऐसे ऐसे प्रयोग करते रहना चाहिए। ये शहरी बच्चे करते नहीं है, जरूर करा करें। आपके घरों में जरूर या आसपास में अमरूद के पेड़ जरूर होंगे या आम के फल होंगे। आपको आम के फल तोड़ने के लिए बहुत दिक्कतें आती है। जामुन के लिए ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक बोतल लीजिए, उसके अंदर एक कट कीजिए और उसके अंदर एक तिकोना कट लगाइए और इसमें एक डंडा लगा दीजिए, नीचे से डंडा ये खोल के इसमें एक पाइप लगा दीजिए, डंडा, सपोज कीजिए ये डंडा है, और इसके अंदर जब अमरूद आ जाएगा तो उसको खींच लीजिए तो ये बोतल के अंदर ही गिरेगा और आपका जो फल है जमीन पर नहीं गिरेगा। इस तरह की डिवाइसें भी आप बना सकते हो प्रैक्टिकली। और गांव देहात के अंदर के मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अभी तक का इतिहास एक बात और कहता है, जितने भी साइंटिस्ट हमारे देश से बाहर गए हैं ज्यादातर, वो गांव देहात के हैं, क्योंकि उन्होंने नेचुरल लाइफ को जिया है, जिंदगी के आसपास के विज्ञान को जिया है। एच.एस. शर्मा सर शायद समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत चीजों को साफ कहने से दूसरों पर आरोप नजर आता है, वो मैं नहीं कहना चाहता। इसके साथ जेम्स वाट, भाप का इंजन सबसे पहले जेम्स वाट ने बनाया था। तो उसकी कल्पना कीजिए कि किस तरह का वो भाप का इंजन रहा होगा। पहली बार आप अपने घर में, अपने पास ये बॉल होती है, खोखली है, प्लास्टिक की बॉल है, उसमें आमने सामने 2 छेद, एक सुराख कीजिए और एक ऊपर कीजिए। इस तरीके से फिर उसको मोड़ लीजिए, है प्रॉपरली। अभी अभी हाथिया तैयार किया है मैंने साथी, तो मैं ढंग से मोड़ नहीं पाया उसको। और फिर मैं आपको आप एक सरफेस लीजिए प्लेन और उस पर रखकर इसको ऊपर से फूंक मारिए। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर। दिख पा रहा है या नहीं? सर कट रहा है। हाँ अब दिखेगा। ये प्रॉपरली ढंग से मुड़ नहीं पाया क्योंकि गर्म कर रहा था मैं इसे। आप लोग गर्म कीजिए, इस पाइप को लीजिए, ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ को गर्म कीजिए, लेकिन इसको बंद ना हो जाए रास्ता, और इधर से भी, और अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। तो जब आप इसको लेंगे और इसे घुमाएंगे तो आपका ये बॉल घूमेगा। घूम तो रहा है सर। घूम रहा है, लेकिन ये बंद है, हवा फ्लो नहीं हो रही है, वो ज्यादा जल गया है, तो उस वजह से शायद ये हवा प्रॉपर्ली निकल नहीं रही है इस तरफ से, अदरवाइज ये घूमेगा। अगर इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, स्ट्रो की बजाय अगर आप जो आपका पेंसिल आप यूज करते हैं, अगर आप पेंसिल ले, मैंने तो स्ट्रो यूज किया क्योंकि छेद बड़ा था, आप पेंसिल को मोड़ेंगे तो आराम से ये ज्यादा बेटर रहता है, इफेक्टिव रहता है। पतला छेद कीजिए इसके साइज के हिसाब से और उसको बेंड कीजिए तो आपका ये घूमेगा 100%। और बहुत अच्छी तरह से इसकी वीडियो पड़ी है मैंने घुमाते हुए की। अभी प्रैक्टिकली मैं ढंग से घुमा नहीं पाया इसे क्योंकि यहाँ से ये ब्लॉक हो गया है। ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए, इसमें से हवा बाहर आनी चाहिए।
और जब अपोजिट डायरेक्शन से बाहर आएगी तो न्यूटन की तीसरा नियम भी लगेगा, और जेम्स वाट के उस भाप के इंजन के कंसेप्ट को भी समझ पाएंगे कि गर्म हवा के साथ साथ हवा का जो प्रेशर और दबाव है उसने अपोजिट डायरेक्शन में किस तरह से इसे घुमाया, और उसके बाद पहली बार भाप का इंजन इसी कंसेप्ट के आधार पर बना था। ये चीजें छोटी छोटी हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसके साथ में तारुफ जो आपको दिखा दी। हाँ, आजकल बारिश पड़ रही है, सब बच्चों को एक आंकड़ा इकट्ठा जरूर करना चाहिए अपने घर के अंदर। शहर के अंदर भी ऐसा होता है कि एक पार्ट पे बारिश हो रही होती है, दूसरे पार्ट पे नहीं हो रही होती। बारिश को कैसे नाप सकते हैं? ये एक अखबार में आप पढ़ते हैं कि इतने मिलीमीटर, इतने सेंटीमीटर बारिश हो गई। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक इस तरह का कोई गिलास लीजिए जिसका नीचे का डायमीटर और ऊपर का डायमीटर एक हो, प्लेन, किसी डिवाइस टेक्निक की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से रोज आप, मैं तो खैर जग लगता था उससे कैलकुलेशन करता था, लेकिन आप गिलास भी ले सकते हैं, उसको रखिए और आपके पास नापने का जरूर पैमाना होना चाहिए मिलीमीटर सेंटीमीटर में, और जितनी हाइट उसकी आई हो, कहीं बारिश में रख दिया आपने तो जो बारिश का पानी इसमें आएगा और उसकी हाइट जितनी मिलीमीटर या सेंटीमीटर में आप नापेंगे, वैसे मिलीमीटर में नापी जाती है बारिश क्योंकि उसकी हाइट का लेवल उसी हिसाब से बढ़ता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि 28 मिलीमीटर बारिश, जब 28 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो इसमें ये है कि बहुत ही जबरदस्त बाढ़ आई है, यानी कि 1.5-2 दिन तक पूरा एक दिन तक जबरदस्त बारिश हुई है, तब 28 सेंटीमीटर तक मिलीमीटर तक बारिश आपको आपके घर के आसपास के इलाके को डुबो देती है। तो इस तरीके से आप उस आंकड़ों को लिखते जाए, आज की डेट में इतना बारिश हुआ, उसे नाप लीजिए, तब एक चार्ट बनेगा, तो आपका रियल प्रोजेक्ट बन जाएगा कि इस बार हमारे मोहल्ले में, हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल के अंदर कितनी बारिश हुई। तो वो डाटा आप अपने प्रोजेक्ट में रियल रखिए। ये नकली प्रोजेक्ट बनाने बंद कर दीजिए बच्चों, जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, ना आपको समझ में आता है ना आपके टीचर को समझ में आता है। मैं भी एक टीचर ही हूं, इसलिए प्लीज प्रैक्टिकल रियल वर्क करिए। बारिश वाला प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। इस समय में बारिश हो रही है, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ दिन बारिश शुरू हो चुके हैं अगस्त तक रहेगी बारिश, मानसून अभी चल रहा है, तो आप इसे नाप सकते हैं। इसके अलावा जब आप पढ़ते हैं तो डीएनए का एक्सपेरिमेंट को टीचर के, ये खास तौर से ये प्रयोग मेरा टीचर्स के लिए है कि आप इसको, ये थोड़ा सा पुराना बना हुआ है जो मेरे पास इस समय उपलब्ध था, मैं उसी को दिखा रहा हूं आपको। इसको आप बना के अगर आप देखेंगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा स्ट्रॉ से। तो आप इस तरीके के स्ट्रॉ को यूज करके, हालांकि इसमें गैप बहुत ज्यादा है, प्रॉपर्ली नहीं बना हुआ है, ये किसी बच्चे ने बनाया था मेरे लिए, लेकिन वो प्रॉपर्ली नहीं बना है तो ये गलत है। लेकिन इसका जो साइज है, एक ही दूरी पर ये टेप से लगा के बिछा दीजिए, उन्हें टेप से बिछा लगा दीजिए, तो आपको दो चीजें इसमें पता चल जाएंगी। एक तो आप ध्वनि को, मूवमेंट को, साउंड का फ्रीक्वेंसी कैसे मूवमेंट करता है ना, फ्रीक्वेंसी वेव तरंगे, वेव मोशंस कैसे मूवमेंट करती है, वो आप जान सकते हैं। और दूसरा, बायोलॉजी में डीएनए का आप इस तरह से बना सकते हैं। आई होप सो बच्चों को समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। जो देख रहे हो एक दो को हाथ खड़ा करें, बताएं मजा आया? यस, गुड। चलिए, और एक चीज और, शरारत हम हमेशा करते हैं क्लास में, शरारत जरूर करनी चाहिए। जो बच्चा शरारत नहीं करता जीवन में बहुत बड़ा, मेरा मानना तो यह है कि वो अच्छा बड़ा आदमी नहीं बन सकता। शरारती होना जरूरी है अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए। आप टेस्ट ट्यूब लेके भी आप कर सकते हैं, और आप पेन का कवर लेके भी कर सकते हैं। ध्वनि को समझने का आसान तरीका है, आप टेस्ट ट्यूब लीजिए, वैसे टेस्ट ट्यूब तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ध्वनि के आधार पर सीटी बजाने का जो तरीका है ये आप करते होंगे, और पाइप के रिफिल से भी करते होंगे। कितने बच्चों ने किया है ऐसा? किया है कभी? किया है? यस, जरूर कीजिएगा। और आप इस तरीके से ध्वनि के अनुनाद को समझ सकते हैं, जो श्रवण ग्रंथ है, अनुपस्थ तरंगे जिस तरीके से काम करती हैं,
उनको समझा जा सकता है। और आप स्ट्रॉ भी लीजिए और कुछ नहीं है आपके पास में, कैंची से काट लीजिए इसे किनारे से। आप दिख रहे हैं ना, देख रहे होंगे, इसे देख पा रहे होंगे, कैंची से काट लीजिए इसको। और ये कटा हुआ पहले से रखा है, बहुत दिनों का है, मुड़ गया हो, देखता हूं इससे बजेगा या नहीं। लेकिन ये शायद ज्यादा कट गया है, साइड से बैलेंस बराबर नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी नहीं हो पा रहा है इससे आप ध्वनि को, फ्रीक्वेंसी के अनुनाद को, संगीत को विज्ञान से जोड़ के समझ सकते हैं। और ध्वनि में जो फ्रीक्वेंसी बनती है जब आप किसी पाइप में फ्लो करते हैं, तो वो कहना चाहिए कि जो तरंगे हैं, वो तरंगे दो तरह की होती है जो भूकंप आते हैं। एक तो वो है जो जमीन से कंपन करके आती हैं, और एक वो होती हैं जो अप डाउन जाती हैं, संग और गर्त की तरीके से चलती हैं। और अप डाउन की वजह से ही वो तरंगे दूर तक आपको कंपन, केंद्र कहीं और होता है हिमालय में या अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, और आपको समाचारों में बताया जाता है, लेकिन उसके कंपन की खनक, कंपन और उसका झटका हमें मेरठ में या दिल्ली में आसपास सुनाई देता है। खैर, एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको, हालांकि एक दो प्रयोग और हैं मेरे पास में अभी यहाँ पर रखे हुए। प्रयोग के लिए, विज्ञान को समझने के लिए बहुत पैसों की प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है। जो टीचर साथी हमारे देख रहे हैं वो समझ सकते हैं। मैंने एक ईंट का टुकड़ा लिया है, एक रस्सी है, मैं आपको थोड़ा खड़ा होकर मैं समझाना पड़ेगा। आई होप दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा क्या? दिख रहा है, दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर दूं, हल्का सा कैमरा। ये एक रबड़ का छल्ला है, भारी। इन दोनों में से दो, रस्सी काफी लंबी हो गई है। इसको, इस रस्सी में एक तरफ मैंने छल्ला बांधा हुआ है रबड़ का, और दूसरी तरफ ये ईंट। मैं इस ईंट को थोड़ा सा और, ताकि ये अब आप देख रहे होंगे कि एक तरफ छल्ला है, रबड़ का है, ये रबड़ है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। दूसरी तरफ ये ईंट है, और बीच में एक रस्सी है, और रस्सी को इस पाइप की मदद से मैंने इसके बीच में से प्रो दिया है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो ये अब आपको चमक रहा होगा, है ना, ये आपको चमक रहा होगा। अगर मैं, ये हम लोग ज्यादातर इसमें प्लास्टिक का यूज करते हैं, पता नहीं इससे होगा या नहीं होगा। अगर मैं इसको घुमाऊं, ये कमरा, कमरा छोटा है, नहीं घूम पाएगा, सॉरी, इस प्रयोग को मैं यहां नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोग बच्चे कर सकते हैं इसे घर पर। इसकी जगह प्लास्टिक का जो पाइप होता है ना, बिजली की फिटिंग वाला, एक टुकड़ा लीजिए, रस्सी लीजिए, एक तरफ कुछ भी हल्की चीज बांध लीजिए, कोई भी हल्की चीज, आप अपना पेन भी बांध सकते हैं, और दूसरी तरफ ईंट का ये अद्धा ले लीजिए। और जब आप इसको घुमाएंगे, ये घर पे करके देख सकते हो, रस्सी थोड़ा ज्यादा बड़ी छोटी होनी चाहिए। जब आप इसको घुमाएंगे इस तरीके से, तो उसके बाद क्या होगा कि ये ईंट ऊपर, घुमाने से क्या होगा, ईंट ऊपर जाती जाएगी। और फिर आपको दो तीन इसके पीछे का एक सिद्धांत समझने की जरूरत है कि जब ये घूमता है तो ईंट ऊपर क्यों खिसकती है। क्या किसी चीज को रोटेट करके हम इस तरीके से ऊपर ले सकते हैं, खींच सकते हैं? पानी को खींचते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं चीजों को खींचने के। तो इससे क्या होता है कि कौन से बल, अब बात आती है कि इसे घुमाने से कौन सा बल ऐसा है जो इसको ईंट को ऊपर खींच लेता है। इसको घुमाने से आपके पास में दो बल लग रहे होते हैं, एक तो हमारे हाथ में लग रहा होता है, और एक होता है दूर जा रहा होता है। दोनों बलों का जिक्र मैंने शुरुआती दौर में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान किया था। उसको क्या बोलते हैं आप? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपके
और अभिकेंद्र बल, ये 2 बल हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको आसानी से समझ सकते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। एक प्रयोग घर पे आराम से करने का और है, लास्ट प्रयोग मैं अभी करूंगा अभी आज का, हालांकि और भी हैं, दूसरी रखी है मेरे पास में। आप अपने घर में कोई भी एक बोतल ले लीजिए, ये वाटर बोतल है, कोई भी बोतल का एक ढक्कन लीजिए और उस पर एक सिक्का, 1 मिनट में सिक्का ले लूं जरा। मैं अपनी गुल्लक में से ये सिक्का निकाला है, ये सिक्के को यहां रखेंगे आप, और इस सिक्के के ऊपर अगर मैं ड्रॉप डालना, कैमरे को थोड़ा नीचे कर दीजिए। मैं टेबल को भी नजदीक कर देता हूं। अब ठीक है, ठीक है, ओके। इस बोतल के ऊपर एक सिक्का रखिए और इस सिक्के के ऊपर कितनी ड्रॉप डाली जा सकती हैं, चलिए बताइए, चैटिंग में पूछिए इनसे। अभिषेक जी मुझे चैटिंग नहीं दिखाई दे रही है, ये लोग लिखे हैं उसमें कितने ड्रॉप्स इस सिक्के के ऊपर मैं डाल सकता हूं। आप अपने घर पे करके देख सकते हैं इसको, और इसके जवाब खुद खोजिएगा। कुछ बच्चों का आंसर 30 है, कुछ का 10 है, कुछ का 7 है। 7, 38, 38 तक आ रहा है। चलिए मैं अभी इसको शुरू करता हूं, मतलब 38 तक आया आपका, है ना? 30 तक 30 तक आया है। चलिए 30 तक आया, गिनिएगा मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 मेरा हाथ थोड़ा सा कांपता है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 तो हो गई ना आपके अनुसार? चलिए 31 32 33 गिर गया, हिल गया ये। मैं आपको बताऊं, हिल गया ये। 30 तक वाले जो कहने वाले हैं वो व्यवहारिक रूप से थोड़ा सा कंपन चल रहा था, हिल गया। अगर हम आदर्श कंडीशन में करें तो इसके अंदर के ड्रॉप बाहर निकलती क्यों नहीं है? और मैं अभी तक का मैक्सिमम बताऊं कि करीब 768 के करीब लगभग है। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अभी तक का, इसका कंपटीशन भी हो चुका है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 768 का है। 768 ड्रॉप्स इसके ऊपर रखी जा सकती हैं। अब बात आती है कि ये ड्रॉप्स, इसमें कोई कवर तो है नहीं, उसके बावजूद भी ये ड्रॉप्स कैसे रुकी हुई हैं इसके ऊपर? ये सवाल का जवाब आप खोजिए। मैं आसानी से बता दूंगा, लेकिन आसानी से बताने से वो याद आपको शायद ना रहे। लेकिन अगर आप इसका जवाब खोजेंगे, ढूंढेंगे और अभिषेक सर को बताएंगे या मुझे बताएंगे, तो आप इस पर देख सकते हैं आराम से। इसके अंदर 700 के लगभग ड्रॉप
आराम से आ जाती है। 768 वर्ड रिकॉर्ड है अभी तक का अधिकतम का। पृष्ठ तनाव, जो आपस में आकर्षण बल होता है ड्रॉप्स का, वो एक दूसरे को जोड़ के रखने का, उसके कारणों से ये ड्रॉप्स एक दूसरे को बांधे रखती हैं और एक लिमिट सीमा के बाद इसको ये गिर जाती हैं। अगर आप ध्यान से देखें, कभी जिंदगी में विज्ञान का प्रयोग बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। जैसे ड्रॉप्स जो होती है ना, अपने आप को असुरक्षित सा महसूस करती हैं जिंदगी के अंदर, और उन्हें लगता है कि गिर जाएंगी या डर जाएंगी, तो उनके अंदर भी एक आकर्षण बल, एक जो बल है वो आपस में एक दूसरे को जोड़े रखता है। इसे जरूर पढ़िए और इसका उत्तर जरूर लिखिएगा। जीवन में आप इसका उदाहरण ऐसे समझ लीजिए, आपने कभी मुर्गे की मीट की दुकान पे जाएं और जिस बक्से में बहुत सारे मुर्गे रखे होते हैं, आप जरा उसे मॉनिटर करें। अभी कोई ग्राहक नहीं है तो मुर्गे शांति से इधर उधर बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही कोई स्कूटर पर, कोई गाड़ी पर उतर कर उस दुकान के अंदर की तरफ इंसान आता है, तो वो सारे मुर्गे एक कोने में एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को पकड़कर अंदरूनी तौर से एक दूसरे को जकड़ते हैं असुरक्षा के भाव में। और फिर उन्हें दुकानदार निकल के आता है, उसे पता है उन सब मुर्गों को आज उनमें से किसका नंबर अब आने वाला है। तो एक साइकोलॉजिकली वो उस तरह के एक बल में जुट जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कई सारे कोण और एंगल से भी जिंदगी को समझने की जरूरत होती है। तो मैं समझता हूं कि ये ड्रॉप्स को भी के ऊपर एक सवाल लिखिए, इसका आंसर लिखिएगा, और जो मैंने प्रैक्टिकल कराए हैं इनको करके देखिएगा। ये ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं है जो घर में नहीं किया जा सकता। बस रस्सी इसमें थोड़ा छोटी लीजिएगा, ज्यादा बड़ी रस्सी ना लें, और इस पाइप की जगह पर, ये लोहे का आ गया है, इसमें प्लास्टिक का पाइप लें, तो आप इसके प्रयोग को कर सकते हैं। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं इसको समझने के लिए भी। एक सवाल चलते चलते लास्ट में मैं और करके मैं प्रयोग करके दिखाऊंगा। ये कितनों को याद आ रहा है? टीचर्स को तो, जो पुराने सीनियर लोग हैं, एच एस शर्मा सर को तो बचपन याद आ गया होगा अपना, गांव के मेले में खूब देखा होगा सर। आप देखिए कि गांव के मेले में ऐसे ऐसे खिलौने बनते हैं कि उसके पीछे के विज्ञान को समझने में कितना मजा आता होगा। सोच के देखिए, उसको बनाने वाला वो पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन वो विज्ञान को जी रहा होता है। हमारे देश के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बोधायन सूत्र के रूप में हम पाइथागोरस को जानते हैं, लेकिन रियल में बोधायन सूत्र बहुत पहले हमारे पास बन गया था। यूरोपियन कंट्रीज के जो देश के वैज्ञानिक हैं, दूसरे देशों के, जैसे आइंस्टीन को हम दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं, उसके पीछे कारण है, जबकि सच्चाई ये है कि वो एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क था। कारण ये है कि हमारे देश के लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकली समझते थे और करते थे, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन के मामले में पूरा हिंदुस्तान सबसे पिछड़ा हुआ है। और यही कारण है कि गांव देहात में बनने वाली ये फिरकनी के पीछे का विज्ञान समझाने वाला कोई नहीं था। बच्चों ने खुद समझा, उन्होंने अपने टीचर से समझा। और आप भी समझिए कि जब इसको मैं सीधा फूंक मारता हूं तो ये घूमता क्यों है। देखिए, आपकी तरफ को है और मैं अपनी तरफ से फूंक मारता हूं, हवा सीधी जा रही है। और जब आप गाड़ी पे लगाते या जैसे बच्चे लेके भागते थे गांव में, आम के पत्तियों की टहनी को एक कांटे में पिरोकर, और जब आप लेकर उसे चलते हैं तो वो घूमती है। लेकिन उसके पीछे के विज्ञान को समझने की जरूरत है और डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत है कि हमारा हिंदुस्तान उसमें बहुत पीछे है। यही कारण है कि हम अपनी किताबों में विदेशी वैज्ञानिकों को ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर अपनी चीजों को पेटेंट करा लिया। और बस पाइथागोरस भी उन्हीं में से एक है। जिस पाइथागोरस को हम पढ़ते हैं और समझते हैं, उससे पहले
भारत में बोधायन सूत्र के रूप में ये प्रयोग पहले हो चुका था, लेकिन नाम किसका पढ़ते हम उसमें? पाइथागोरस का। तो इसलिए मैं सारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि ये जो 100% की जो दौड़ है ना, प्लीज इस दौड़ में जाना बंद कर दीजिए। ठीक है 80-90 तक आप ले आए क्योंकि आप देश का माहौल है, परसेंटेज में जाना बंद कर दीजिए। इन सिद्धांतों को, इस फिरकनी के सिद्धांतों को समझना और उसे डॉक्यूमेंट करना सीख लीजिए। और प्रोजेक्ट के नाम पर जो इंटरनेट से आप डाउनलोड करते हैं उसे भी बंद कर दीजिए अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। मैंने पिछले 10 साल का डाटा इकट्ठा कर रहा हूं कि 100% मार्क्स लाने वाले बच्चे जिंदगी में क्या कर रहे हैं। वो बहुत बड़े नहीं बने। ध्यान रखना, जिंदगी में 100% लाने वाले, अभी तक जो मेरे पास डाटा आया है, वो जिंदगी में बहुत ही क्रिएटिव इंसान नहीं बने। और जब तक क्रिएटिव नहीं होंगे तो आप जिंदगी में आगे सफलता नहीं ले सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप क्रिएटिव बने, डायनेमिक बने और डाटा कलेक्शन करने वाले बने, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की आदत नहीं है। हमारे आईएएस में भी एक लेक्चर है, अभिषेक को मालूम होगा, बताते होंगे जरूर, कि लिखते समय जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है वो आईएएस नहीं बन सकता। राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है और प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो आप बोलना सीखिए, डॉक्यूमेंटेशन करना सीखिए और लिखना सीखिए। बच्चे आजकल लिखते नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं लिखता, इस बार 12th में है, लेकिन वो भी लिखने के मामले में बड़ा कमजोर है। मैं उसको भी समझाता हूं कि राइटिंग पावर मजबूत बनाइए, लिखना सीखिए और इस फिरकनी के पीछे के विज्ञान को समझिए कि मैं सीधी हवा मार रहा हूं तो घूम क्यों रहा है। इस पत्ती को भी समझिए। और कुछ ना समझ में आए तो अपने गली मोहल्ले या घर के बाहर पार्क में आम के पेड़ की 3 टहनियां, पत्तियां तोड़िए और उनको फिरकनी की तरह एक कांटे में पिरोइए। जैसे ये कागज है वो फिरकनी बन जाएगी और फिर उसे सीधी हवा मारिए। तो ये अभी जो मैं ये एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहा था बॉल वाला, उसी तरीके से ये घूमता है, वो भी इसी तरीके से हवा के प्रेशर से घूमती है और वो डायरेक्शन में हवा को इसी तरह से घुमाती है। जैसे मैं यहाँ घुमा तो ये तिरछी हवा में ये इधर की तरफ डायरेक्शन है, इसका पत्ती जो कागज है वो इस तरफ प्रेशर डालती है तो वो इधर को घुमाएगी। देखिए अब ये उल्टा घुमा रही क्योंकि इस तरह से प्रेशर ऊपर की तरफ को जा रहा है। जब मैं इधर से जाता हूं तो ये धकेलती है इसको। आई होप आपको समझ में आया होगा और मजेदार लगा होगा मेरी बातचीत। मेरे पास लगभग 1500 इस तरह के प्रयोग हैं कि जब हम अपने घर में दक्षिण की खिड़कियां जो है, लोग कहते हैं कि दक्षिण की तरफ मुंह मत करिए, अपने घर का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। और मैं कहता हूं कि दक्षिण की तरफ घर करने वाले लोग बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। वो साइकोलॉजिकल बीमार हो जाते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में, तथाकथित शास्त्रों में, ये तथाकथित पोंगा पंडित जो होते हैं, जो ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, वो लोग भी गलत जानकारियां देते हैं कि दक्षिण की तरफ मुंह वाला घर शुभ नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। जबकि मैं ये बता दूं कि सूरज हमेशा डायरेक्शन दक्षिण से ही आती है। और सर्दियों में यहाँ चलते चलते एक चीज और बताता चलूं, 2 प्लेट्स में लाया हूं, व्हाइट और ब्लैक। आप घर पे करके देख सकते हैं। सर्दियों में, गर्मियों में अगर छत व्हाइट रखेंगे तो गर्मी कम गर्म होगा घर, और गर्मियों में अगर ब्लैक, टीन का कलर ब्लैक कर दोगे तो गर्म तप जाएगा, हीटर बन जाएगा आपका घर। इसलिए सर्दियों में खिड़की का जो वो फिल्म है वो ब्लैक होना चाहिए और गर्मियों में व्हाइट होना चाहिए। दोनों को उठा के धूप में रख के देखिए, एक ये काला वाला ज्यादा गर्म होगा, सफेद वाला ठंडा होगा। तुलना में 5 से 10 डिग्री का अंतर पड़ता है। वैसे मैंने जो अपना अनुभव किया है वो 5 डिग्री का करा है। तो जिंदगी में आप अपने घर को बिना एसी के सर्दियों में बिना हीटर के गर्म रख सकते हैं काली फिल्म लगाकर। तो ये एक मजेदार और प्रयोग है और आप अपने घर में प्रैक्टिकली करके देखिएगा। तो जो भी आप प्रयोग करें वो अपनी जिंदगी से जुड़े हुए हों। हमेशा ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जब स्कूलों में एग्जीबिशन लगती है तो वो चीजों के प्रयोग बनाते हैं जो आपकी लाइफ के जीवन के आसपास से जुड़े हुए नहीं होते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर मेरठ में अगर आप प्रयोग बना रहे हैं तो समुद्र पर ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे। अरे भाई मेरठ में समुद्र कहाँ है? अपने जिंदगी के आसपास के वातावरण को ढूंढिए, उसके विज्ञान को समझिए और उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम सोल्वर बनिए, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। बस मैं आज अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस दिए हैं, बच्चों में वो जिज्ञासा भी पैदा की है आपने, और ये आप और बच्चे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। सर मेरे पास चैट बॉक्स एक्चुअली प्राइवेट है, चैट बॉक्स में मेरे पास इस समय कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, बच्चे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। जैसे एक बच्चे ने अभी कहा कि सर हम आलू जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा करके भी हम किसी को फ्लोट करा सकते हैं, लिक्विड की डेंसिटी के अलावा सरफेस एरिया को बढ़ा करके भी हम फ्लोट करा सकते वो हैं। आर्किमिडीज नहीं, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जी जी जी, लेकिन यहाँ मैं इसके माध्यम से डेंसिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चे आपकी बात में हाँ, ये इन्वॉल्व अच्छी हो रहे बात हैं, है। रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। और बच्चे मतलब सवाल भी बहुत सारे मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि समय इतना काफी हो चुका है हमारे पास, जो है 2 घंटे की समय सीमा थी, तो थोड़ा हमारे पास समय की अभी शॉर्टेज हो गई है। मैं अब विक्रम सर को बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विक्रम सर अपना एक मैसेज दें बच्चों को कि कैसे वो आगे बढ़े जीवन में, वैज्ञानिकता अपने अंदर पैदा करें, और अगर अपने अनुभव से, चाहे वेस्ट का और ईस्ट का अनुभव है, उसके आधार पर उन्हें अब अपने करियर को, और जैसे दीपक सर ने भी कहा कि मार्क्स के पीछे भागने की बजाय क्रिएटिविटी के पीछे भागने तो बेहतर होगा, वैसे ही सर से भी चाहता हूं कि आपका एक फाइनल मैसेज अगर हमें मिले। जो दीपक सर ने कहा वो मुझे भी बहुत पसंद आया। उसके वो जो उन्होंने कहा स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। मैं अपने बचपन के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स याद कर सकता हूँ जो मैं खुद चम्मच में चूने को गर्म कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि फिर पानी डालने से फिर से गर्मी पैदा होती है कि नहीं। ये मैंने खुद अपने आप क्लास में पढ़ के आया और घर में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वही दीपक सर बता रहे हैं, बहुत ही पसंद आया, मुझे भी सुन के बहुत खुशी हुई। मैं कहूंगा कि कई बार अपने भारत देश में ये रहता है कि भाई हम अपने आप पढ़ेंगे, ट्यूशन नहीं करेंगे। वो नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं आप जहां तक हो सके गुरु और मेंटर्स को ढूंढिए और उनसे वो बातें सीखिए जो उनको पता है। आपकी लाइफ में नया करने का टाइम आगे आएगा। पहले जो लोगों को पता है वो बातों को सीखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच लीजिए। बाद में आपको टाइम मिलेगा नया काम करने का। जहां तक हो सके अपनी लाइफ में गुरु हो सके उनको ढूंढिए, मेंटर्स को ढूंढिए जो आपको सिखा सके। दीपक सर जैसे लोग ढूंढिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम अभी भी हम लोग लॉज में पढ़ते हैं, जैसे फैराडे हुए। फैराडे का एक बार स्टोरी पढ़िए आप लोग। माइकल फैराडे करके एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही गरीब परिवार से आए थे। उनके पास देख के मतलब ऐसा लगेगा आपको कि उनके पास तो साइंटिस्ट बनने का कोई तरीका ही नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। एडिसन की स्टोरी को पढ़िए। एडिसन की स्टोरी में आप देखेंगे उनको तो स्कूल से निकाल दिया गया था कि भाई ये बच्चा मंदबुद्ध है और हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। तो एडिसन की माँ ने उनको घर पे ही लैब बना दिया और घर पे उन्होंने पढ़ा और दुनिया के बहुत बड़े इन्वेंटर बने वो। ये सब बहुत जरूरी है बच्चों को समझना, उससे मोटिवेशन लेना। सबसे बड़ी बात तो हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बात और आखिरी बात मैं कहूंगा, साइंटिस्ट आप बनिए, साइंस को पढ़िए, लेकिन साइंस के साथ साथ आपको सोशल अवेयरनेस होना पड़ेगा, इमोशनल अवेयरनेस होना पड़ेगा, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं ये सब होना पड़ेगा। ये जो जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं सब ने कम्युनिकेशन पे बहुत जोर दिया था। वो लोग बहुत बड़े सेल्समैन थे अपने साइंस के। तो आपको सिर्फ साइंस करके काम नहीं चलेगा, आपको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, सोसाइटी के साथ चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत अच्छा मैसेज है वाकई में। यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू बी क्रिएटिव, आपको, एंड यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू एडजस्ट द थिंग्स जो आपके। आई थिंक अभिषेक इंटरनेट आपका
मैं आपको सुन पा रहा हूँ दीपक सर, तो जी अभिषेक के इंटरनेट में प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई नहीं। मैं इतनी बीच में समय का उपयोग कर लूं। इस समय हम वर्ल्ड का रियलिटी लाइव शो चलाते हैं, विज्ञान घर, जैसे बिग बॉस होता है। तो जो बच्चे उसमें शामिल होना चाहते हैं, और मैं चाहूंगा सर कि आपका भी सहयोग मिले इस चीज में। विज्ञान घर का है जी, मैं नंबर बोलता रहा हूँ, लिख लीजिए प्लीज। व्हाट्सएप नंबर 9358414442। 442 आपने बोला? 444। ठीक है। 9358414442। और मिल मैं गया चाहूंगा सर। कि जो बच्चे विज्ञान घर का हिस्सा बनना चाहते हैं, मजेदार होता है हमारे यहाँ, और वर्ल्ड का पहला रियलिटी साइंस शो है सर ये। हमने इंडिया में शुरू किया था इसको। सर ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्या बताऊं, इससे बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों को, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इस बार हम तीसरा बनाने जा रहे हैं। वो तो लॉकडाउन आ गया बीच में, नहीं तो तीसरा अब तक बन चुका होता जून में। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का सामान्य लाइफ होगी, हम जल्दी ही इसी साल में बनाने जा रहे हैं। तो जो बच्चे इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, वो स्वागत है उनका सभी का। विज्ञान घर, आप नेट पे सर्च मारेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा विज्ञान घर के बारे में। ठीक है सर, जरूर देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम सर, पूरा नाम? मेरा नाम विक्रम डागा है। अच्छा, विक्रम डागा। आप कहाँ से हैं? मैं दरभंगा, बिहार से हूँ। अब अच्छा। जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था और उसके बाद कंपनी ज्वाइन की मैंने, तो मैं बच्चों को बता दूं जो सुन रहे हो, किसी ने मुझे ये कहा था कि अरे तुम तो बहुत दूर आ गए। मतलब उसने मुझे ये बोला कि तुम जिस जगह से हो उस जगह से यहाँ तक आना बहुत दूर का सफर तय कर लिया तुमने। मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन मुझे सुन के थोड़ा सरप्राइज हुआ कि लोग ऐसा सोचे मेरे बारे में। लेकिन किसी ने अगर ऐसा सोचा, मतलब ये मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी यहाँ पे जो भी सुन रहा हो, वो जो चाहे वो कर सकता है। मोस्टली ऐसा हो सकता है कि कई बार आपको वो चीज एग्जैक्टली ना मिले जो आप उस समय चाहते हो, लेकिन उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, जरूर आप अगर लगे रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। अभिषेक, आवाज आ गई क्या? मुझे लगता है कि हमें स्वयं ही वाइंड अप करना पड़ेगा। अभिषेक शायद फ्रेम से बाहर हो गए। मेरे ख्याल से वो हमसे आखिरी मैसेज और कंक्लूजन मांग रहे थे, तो हमने तो दे दिया। एचएस शर्मा सर भी दे दें, और उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर। शर्मा सर, एचएस शर्मा सर, आप आवाज सुन रहे हैं? हाँ नहीं सर, मैं बहुत ध्यान से आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। जी सर। आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद। और विक्रम सर को भी, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। और देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में जो युवा लोग हैं, उनको मोटिवेट करना और नई नई दिशाएं देना, नया नया ज्ञान देना, और उनको साथ में जीवन से वो जुड़े रहें, हमारा जो दैनिक जीवन है उससे जुड़े रहें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एक सवाल आ रहा है। अभिषेक ने बताया मुझे अभी कि वो लोग चैनल का नाम पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विज्ञान आओ करके सीखे यूट्यूब का चैनल है, और इंडिया में सबसे पहला चैनल है जो 24 घंटे 24/7 आवर्स जो है लाइव चलता है। तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, और यदि आप समाचार पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हम साइंस के चला सकते हैं उसमें। और विज्ञान घर का मैंने आपको बता ही दिया है, जिसकी जो प्रॉब्लम्स है वो पूछ सकता है कभी भी, और एनएस कॉलेज में आके भी मिल सकता है, मेरे से कोई डाउट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एचएस शर्मा सर, बहुत ही अच्छा लगा सर, आप जैसे सीनियर लोगों का आशीर्वाद हमको मिला। डागा साहब का बहुत ही अनुभवी एक चीज एक्सपीरियंस मिला हम सब लोगों को। और बाकी जो बच्चे हैं, जो लोग सुन रहे होंगे हमको और देख रहे हैं, आज सर लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड किया था इस मीटिंग के लिए। 1500 से ज्यादा वो इस पे नहीं आ सकते थे। तो ऋचा जी ने मुझे बताया कि जो है उनको अब फेसबुक लाइव दे दिया गया है, ताकि वो लोग जो बच गए हैं वो लोग सब फेसबुक लाइव पे चले जाएं। तो वो लोग बाकी सब फेसबुक पे देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं सुरेंद्र शर्मा सर से कहूंगा कि अब हैंडओवर आप कर लें और फिर समापन करें बाइंड अप। हाँ नहीं, मैं अपनी बात कह चुका हूँ। जो बातें, देखिए, जो लक्ष्य आप लोगों ने रखे हैं, और आपने
मैं ये कहूँगा कि हमारे भारतवर्ष में जो विक्रम सर किसी हद तक एग्री कर रहे हैं कि हमारी जो विज्ञान है वो बेंच पे नहीं हो पा रही है। हम ये कहते हैं, जब हम बीआरसी में भी थे तो हमारे यहाँ विज्ञान करने वाले तरह तरीके के लोग हैं, टीचिंग भी करते हैं, साइंस भी करते हैं, लेकिन साइंस मैनेजमेंट भी करते हैं। तो हम जितनी अधिक से अधिक विज्ञान बेंच पे करेंगे, बेंच का मतलब प्रायोगिक, उनको एक्सपेरिमेंटल उसमें ले जाएंगे, जैसे हम लोग कर रहे हैं चीजें, यस, जो आपने करके दिखाया है, उसमें से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, नई सोच निकलेगी, और हम अपने आप को, अपने जो शास्त्र हैं, मैं कहूंगा कि उनमें इतनी विज्ञान छिपी हुई है, उससे हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। आज तो हम आज के समय में तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास नेट, इंटरनेट सब कुछ उपलब्ध है, और कहीं से भी हम जोड़ सकते हैं। तो और साइंस को रोचक बना सकते हैं, उसको व्यावहारिक बना सकते हैं, और उसको हम अपने जीवन उपयोगी भी बना सकते हैं, और उससे हमारा जीवन, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा रख रखाव सब कुछ सुधर सकता है, सब कुछ। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत। मेरा भी वैसे मैं आ गया हूँ, वापस आ गया। मेरा नेट चला गया था। अब आप सोचिए इस कनेक्टिविटी में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं भारत के अंदर, कोविड में इस कनेक्टिविटी पे हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। 1 घंटे के सेशन में 4 बार मैं लॉग आउट हुआ हूँ। तो देखिए चुनौतियां। मैंने कहा शुरुआत में ही कि इंटरनेट हमारे देश में बहुत अच्छा नहीं है। जी जी जी, हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं है। जो भी है जियो ने, उसके लिए धन्यवाद जो उन्होंने दे दिया, जितना भी दे दिया। जी जी जी। अच्छा, मैं जो हूं अब यहाँ पर हमारे सीनियर मोस्ट जो सदस्य हैं सुरेंद्र जी, मैं सुरेंद्र जी को बुलाना चाहता हूं। वो ऋचा जी की तरफ से सुरेंद्र जी जो है सबका एक बार अंतिम धन्यवाद, मतलब कार्यक्रम का समापन भी कर दें। जस्ट अ मिनट में सुरेंद्र जी को वो कर देता हूँ। सुरेंद्र जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? शायद वो एक्चुअली नेट जाने की वजह से ना, और कुछ कंट्रोल्स ऋचा के पास थे, तो हमारा थोड़ा सिस्टम बिगड़ गया है। सर आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे ना? चलिए कोई बात नहीं हो पा रहा अनम्यूट। आप सुरेंद्र जी आप तो होस्ट बने हुए हैं ना, आप खुद से कर लीजिए अनम्यूट। नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं ही कर देता हूं, कोई बात नहीं। मैं जीएससी की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। एक छोटी सी कोशिश थी, नेटवर्क के इश्यूज हैं, बट ये एक छोटी सी कोशिश थी कि हम बच्चों को उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें जो लोग जो है विज्ञान को न केवल पढ़ रहे हैं बल्कि विज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी हर तरफ से, और उनके अनुभवों से बच्चे सीखे। आई होप बच्चों को लाभ हुआ होगा। और हमारे जो सभी गेस्ट आए हैं, हम उन्हें आगे भी परेशान करते रहेंगे, आगे भी ऐसे कार्यक्रम में हम उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहेंगे, आपका समय लेना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है अब सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी कार्यक्रम लेकर आएंगे। आप सबके सवाल हम नहीं ले पाए क्योंकि हमारे पास आज 350 से 400 स्टूडेंट्स थे जो इस सेशन के साथ कनेक्टेड थे, तो हम सबके सवाल नहीं ले पाए। अगली बार आप सबके सवालों के साथ ही एक कार्यक्रम हम जरूर करेंगे। तो एक बार और जीएससी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद सर, सभी का धन्यवाद।